interim together on this for this BI event where they are going to share exactly what kind of models they are offering, what kind of wind power based power systems and solar based systems they have, and what are the challenges they are facing in implementing the projects. I request them to make sure that by the end of the session, our members should be knowledgeable enough and understanding should be so thorough with them that how to go about step by step. If we can list that down, this is the procedure to do and get into open access either by wind or by solar or by combination model. I really wish that the members should get that kind of takeaway after the meeting. So with this kind of opening remarks, and we have Goenka ji also to and Gindhari Bhaiya who are going to support us in terms of the various policy related issues to understand, and if there are any gaps or in implementation or in terms of policy making, they are also there to assist. So I think we are a complete forum available. I request first our President Vishal Agrawal to welcome Mr. Puneet Goyal of Intrum. He is co-founder and CEO of Ingram Energy. So, and as I just mentioned, that Vishal has already experienced a lot of benefit out of this wind energy project. So we will request you to share those snippets as well as give the welcome address. Hello, good evening, everyone. Good evening. So, one measurable benefit I have gained by being a president of BIA is this one energy project, wind solar energy project, because as we all know that we keep on crying about the problems faced by especially with our industries because of the high cost of energy. So I was discussing in the meeting that, okay, this is one thing that we have to fight with the government, but what is the other option? So Nitin Agrawal, he said that why don't you buy a windmill? I said, what is the possibility? So he explained me that there is a possibility of buying a second-hand windmill, 1.65 megawatt, costing not more than 2 crore, I think. 1.5 crores. So that was a thing he has given to me, the insight he has given to me. Then we studied and then we concluded that instead of going for second hand, why not to go for a new one? So we posted one message in the group and we came to know that Ingram is doing this project on turnkey basis. So we approached them and we approached Suzlon also. So we made a comparison and then ultimately we went with Ingram for this project. So we have installed 2 wind turbines, 2.1 megawatt each. It is installed in Nandurbar area and we are taking the current year in Nagpur. So what are the challenges and what are the benefits? So Puneet Goyal will explain us, and I will also share my experience because when we launched this project, so we were not knowing what are the actual expenses. Even the bills were not available to see what is the actual MSEB is charging to us, especially for Vidarbha. This was the pilot project. So now we have data for the last 3 months. And the best part was these 3 months are the best period to get wind turbine energy. So now I welcome Puneet ji and hand over the stage to Puneet ji. Thank you. Hello, good evening. Good evening, all BIA members. And thank you, Vishal and Prashant for allowing us to come here and make a presentation on options that are available for large consumers in Nagpur area, in BIA area, for sourcing renewable energy power and reducing their overall cost of power. Because power is a big issue for all industrial and commercial consumers across India. Because while they are charged the maximum, they are the least. I mean, the political system are least bothered about their cost of power. They have other, priorities, and therefore, in spite, so the way the system is working. One, there is no incentive for the DISCOMs to reduce their cost of power, no substantial incentives.
And second, basically, this is the only area or the only segment, industrial and commercial, which provides cross subsidy for the other subsidizing sectors. So the tariff has been increasing in this sector forever. In fact, a few years back, I had made a comparison of industrial tariffs in India versus China, US, and Europe. And it was nearly 1.6 to 1.7 times what industrial tariffs are paid in China, and Indian tariffs are even higher than the tariffs that are paid in Korea or even in Europe. And in all these countries, the residential tariffs or the agricultural tariffs are much higher than the industrial tariffs. Industrial tariffs are much lower as compared to the residential or agricultural tariffs. So given that background, and over the last 15-20 years, we have not seen any reduction in tariffs anywhere. So we have to make alternate arrangements to reduce our cost of power, which is a very important input in production of our materials. So having said that, I'll start the presentation. सर पूरा चेयर दिए So basically, the presentation is in two parts. First is covering the background on regulations on the profile of wind and solar generation, and how the open access capacity is calculated. And hence, what is the implication from an industrial consumer point of view? What are the things that needs to be considered while planning for open access capacity or while planning for renewable energy sourcing of power? So we'll start with the profile of generation. So if you see this profile, basically, this line is the solar line. So what we have done is, we have considered 1 megawatt as the capacity for all solar, wind, and the combination. So for solar, 1.4 megawatt is the DC capacity, peak capacity that we have considered, and evacuation or AC capacity we have considered is 1. Wind generation is on AC basis only. So there, the data is on the basis of 2.1 megawatt turbine, but we have converted it into 1 megawatt capacity by dividing it by 2.1. Punit, excuse me, will you be able to share the presentation so Yes, that then yes. people will not note the values and all? Yes, definitely. Will you share it? We'll share it. Okay. It's already there with them, and we'll share it. Okay. And in Maharashtra, unfortunately, although we have both wind and solar resources, but hybrid is not allowed as a concept in Maharashtra. In all other states where both wind and solar resources are available, like Karnataka, Gujarat, Andhra, there they have allowed hybrid. So instead of hybrid, I've said combined. I mean, when they are sourcing power from both wind and solar. So typically it's called hybrid in other states. Here I've used the word combined here. So basically, this is the monthly profile of generation from month 1 January to December. And solar is a relatively flatter generation. The variation in solar generation on a month-to-month basis is lesser. Relatively, solar generates lesser in monsoon months, which is basically June to August, basically 15th May to sometime like 10th September. That's the period of monsoon. So that's the period when solar generates lesser. Solar generation is highest during December, January, February period, because that is the period where temperatures are not very high. So panel doesn't degrade. Typically, solar panels generate maximum at 30 to 35 degrees centigrade. Beyond that, they start degrading. So January, February, March is typically the period in India when the generation is maximum, especially the southern part of India. Gujarat, Maharashtra, and south part of India, where the sun is very bright during this period. Wind generation is typically maximum during the monsoon months. So when the solar generation dips on a monthly basis, wind generation peaks. So wind generation, so the wind blows when the monsoon arrives. So before the monsoon arrives until the monsoon is there. So around around from the first week of May in Maharashtra, the wind generation starts maximizing, and it continues up to end of August or first week or 10 days of September. And this is the period where nearly 50% of the annual generation happens in this 4.5 month period. And remaining 7 to 8 months period, the remaining 50% of the annual generation comes from wind. So when we combine wind and solar, it basically
it cancels out each other. The negative portions of both get cancelled to an extent, wherein the lesser generation of solar during monsoon months is compensated by much higher generation of wind during the monsoon months. So on a month on month basis, we'll see that coefficient of variation for solar is lesser. For wind, it is higher. But one important point to note is every month the wind generation on a per megawatt of evacuation basis is either equal or higher than the solar generation. So in a scenario in Maharashtra where our capacity is constrained by regulations, the capacity that we can set up is constrained linked to contract demand or resultant power flow ratio. So this becomes an important consideration that on a per megawatt basis, what gives me the maximum generation, maximum output. And in that, if you see, except for November, where wind generation is 1.67 lakh units and solar is 1.57 lakh units. Except for November, all other months, solar wind generation is higher on a per megawatt basis as compared to solar generation. Puri ji, just two suggestions. I think that was not mentioned anywhere that these are units generated. I think if we can add that in the presentation, it will help. We'll do that, sir. Yeah. The second characteristic that we need. No, to one do- more thing important there Yes, sir. is that the combined is not an addition. I think you were highlighting that point. That is very important. Combined is not equal to solar plus wind because of limitation of the resultant current flow. I think you need to highlight that. That is very important. Y axis, what is that? Number of units. Y-axis is the number of units, sir. Number of units. Number. Number of units. So, हाँ, so वो वही, इस पे भी mention कर देंगे table में. Yes, table पे वही. We'll do that. So, the problem in Maharashtra is that they don't allow hybrid in open access. They have allowed hybrid in utility bidding actually, and this is also surprising. In utility, they are allowing wind and solar to be combined. And you can code an evacuation capacity as per your requirement. They are not binding you. But in open access, they are saying that your evacuation capacity, for example, if solar is 1 megawatt AC and wind is 1 megawatt AC, they are saying that you have to take 2 megawatt of open access capacity. You are not allowed to take 1.5 megawatt of open access capacity. In Gujarat, the requirement is that between wind and solar, whichever is the highest, to the addition of simple addition of 2. So उनके बीच में आप कोई भी ओपन एक्सेस कैपेसिटी ले सकते हैं. सो अगर विंड आपका मान लीजिए 10 मेगावाट है, सोलर 5 मेगावाट है, तो 10 मेगावाट से 15 मेगावाट तक you can take any evacuation capacity. You can keep it at 10 megawatt, you can keep it at 15 megawatt. That is your call. What they are restricting you is that once you have taken an open access capacity, let's say you have taken an open access capacity of 10, you cannot evacuate more than 10 megawatt in any 15-minute time block. अगर आपका उसके ऊपर जाता है, मान लीजिए एक 15 मिनट के ब्लॉक में 11 मेगावाट जाता है, तो जो एडिशनल 1 मेगावाट आवर है, उसको वो लोग अपने पास रख लेंगे, उसकी आपको कोई वैल्यू नहीं देंगे. They will not give you any money for that, and neither will they give any credit for that. So that is how it works in Gujarat. In Karnataka also it works in a similar manner, and in Andhra Pradesh and any other state where the both wind and solar resources are available. So ये जो graph आपने दिया है 15 वाला, तो ये this is dependent on individual's contract demand. सर वो सेकंड पार्ट है, वो तो उससे ऊपर वैसे ही नहीं लेते. वो तो उससे ऊपर तो आप जा ही नहीं सकते महाराष्ट्र में. नहीं, गुजरात में कैसा है? गुजरात में अभी उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट डिमांड का रेस्ट्रिक्शन हटा दिया है. अच्छा. So आप सोलर भी पूरा लगा सकते हैं जितना आपको मतलब. So that is your call. You have to do the mathematics, you have to do the analytics, and you have It to. is immaterial है, मतलब मेरा contract demand is immaterial. Whatever power I want, I can get. So कर्नाटका तमिलनाडु में हमेशा से ऐसे ही चलता आ रहा था. गुजरात ने अभी जब से जीई ग्रीन एनर्जी ओपन एक्सेस का जो रेगुलेशन आया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, उसके बाद से उन्होंने अभी जो फरवरी में उन्होंने जो नया रेगुलेशन लाया है इन लाइन विद जीईओए रेगुलेशन, उसमें उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट डिमांड का लिंकेज हटा दिया है. आप सोलर भी कितना भी लगा सकते हैं, विंड भी कितना भी लगा सकते हैं, हाइब्रिड भी कितना भी लगा सकते एक्सेस जनरेशन वो लोग रख लेंगे अपने पास. हाँ, excess generation वो लोग अपने. हैं. हाँ, अगर एक्सेस हुआ बियॉन्ड द इवैक्यूएशन तो वो आपके पास रखा. सर ये विंड जो आपने बताया ये जनरेशन महाराष्ट्र एंड गुजरात की आपने कंसिडर की है कि आपने साउथ की कंसिडर की? नहीं, ये सब महाराष्ट्र की महाराष्ट्र. जो हमारा नंदुरबार का है. नहीं तो वो ऐसा नहीं होना चाहिए नहीं. कि तमिलनाडु की और इधर की कर ले तो. नहीं सर, महाराष्ट्र की. जो अपनी wind- तो इसमें एक आपका यदि PLF भी आप लगा देते पुरी जी, या वो आप नीचे आएगा क्या? आगे आ रहा है. ठीक है, ओके. 28% ओके. This is the averaging of 365 days of 24 hours of generation. So basically ये 1 to 24 are the number of hours. This is the solar. This is solar curve. This is the wind curve. Again, this is all on per megawatt basis.
Solar is 1.4 megawatt DC, 1 megawatt AC. Wind is 1 megawatt AC. And then combination of 1 megawatt wind plus 1 megawatt solar has been shown. Megawatt peak of solar has been shown. So solar is this curve. Basically, solar generation is largely from 9 AM to about 4 PM. So 7 hours का generation होता है. 9 बजे से पहले भी कम होता है, 4 बजे के बाद भी खत्म होने लगता है. Wind generation is much more steadier on a 24-hour basis. And जो प्रशांत जी आप बात कर रहे थे, दिन में wind का generation कम हो जाता है, ग्राफ डिप हो रहा है, और रात में इवनिंग्स में wind का generation बढ़ जाता है. So to an extent they are complementing each other, both solar and wind. Solar का generation उस समय highest होता है, and therefore that is the resultant curve which comes if we are sourcing power from both wind and solar. In this case, I have considered 1 megawatt wind and 1 megawatt peak solar. So in this case, the coefficient of variation for solar is very high. For wind is much lower, as we can see. Or we start from top. So annual generation for solar is about 21.64 lakh units for 1 megawatt AC, which is equal to 1.4 megawatt DC. So per megawatt DC, solar generation is about 15.5 lakh units. So on a, if we multiply it by 1.4, it is 21.64. Wind, our side generation is for 2.1 megawatts, so non-turbine, it is 68 lakh units per annum. So that has been converted into 1 megawatt, and that generation is about 32 lakh units per annum. This is about 1.5 times of solar generation. The PLF is similarly there, 24.7 and 37% for solar 1 megawatt AC and wind 1 megawatt AC. And I have not calculated, typically we do this calculation for competition also, but because hybrid is not allowed here, so we have not done this calculation. On a hybrid basis, in a state like Gujarat, we are able to do between 53 to 55%. What here is 37%, because wind generation is also better in Gujarat, it is close to 40%. Considering this wind generation, if we draw a baseline, so that much amount of CD contract demand can be reduced. सर ये बहुत वेरिएबल होता है on a time to time basis. ये एवरेजिंग है सर, ये एवरेज है, तो दोनों विंड और सोलर में वेरिएशन बहुत होता है. तो ये तो एवरेजिंग है सर. जैसे आज के दिन में, आज की तारीख में अगर आप किसी का भी रूफटॉप प्लांट देखेंगे तो उसका जनरेशन बहुत कम होगा, क्योंकि आज धूप ही नहीं निकली है, तो रेडिएशन ही नहीं मिला है सोलर प्लांट को. नाउ कॉन्ट्रैक्ट डिमांड रिडक्शन का ऑप्शन कहाँ लेते हैं? वी आर नॉट टेकिंग, हम एमटी शॉर्ट टर्म में और मीडियम टर्म में कहाँ ले रहे हैं रिडक्शन इन कॉन्ट्रैक्ट डिमांड? कहाँ डिमांड पे सर मैं पिछले 15 साल से ओपन एक्सेस में हूँ, पहले ट्रेडिंग में था. कभी भी मैंने क्लाइंट को नहीं बोला कॉन्ट्रैक्ट डिमांड रिड्यूस करो. क्लाइंट का पहले होता था, कॉन्ट्रैक्ट डिमांड रिड्यूस कर ले. अब वो नहीं है. बट अगर थर्मल है तो अलग चीज है. पहले थर्मल वो डिफरेंट है, बट इसमें तो रिन्यूएबल एनर्जी, इवन शॉर्ट टर्म ओपन एक्सेस में भी थर्मल से पहले ओपन एक्सेस होता था. तभी आई नेवर सेड कि आप कॉन्ट्रैक्ट डेटा से बेसलाइन अगर आप ड्रॉ करें, हाँ, कितना कॉन्ट्रैक्ट डिमांड कम किया जा सकता है, कुछ ना कुछ कम किया जा सकता है. नहीं आएगा गोयनका जी, मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि वहां पे भी प्लांट फेल हो जाएगा तो आप अपना प्रोडक्शन प्लांट थोड़ी बंद करेंगे. नहीं करेंगे गोयनका जी, वो बात ही मत करिए, वो कंफ्यूजन हो जाएगा. फेल नहीं होगा. इसके अंदर में हाइब्रिड के अंदर में एक बेसलाइन ड्रॉ कर सकते हैं. सर देयर वुड बी ऐसे स्पॉट्स आएंगे जब जीरो आएगा. मैं आपको बता रहा हूँ वो स्टडी होती है, वो मत कराइए, वो विदाउट उसके ही बात करना है. बट हम नॉट वर्थ इट. बट एक्सीड भी हुआ एखादे महीने में तो पेनल्टी नहीं, लेकिन उससे अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट डिमांड कम किया और आपका डोमेस्टिक आपके फैक्ट्री में अगर डिमांड बढ़ गया तो पेनल्टी भी है. वही मैं बता रहा हूँ, वही की बात बता रहा हूँ. इट्स नॉट वर्थ है, हमने भरा है. नहीं वो वर्थ नहीं है गोयनका जी. स्टैंड बाय डिमांड सैंक्शन 150% नहीं अरे स्टैंड बाय डिमांड सैंक्शन. चलिए देखिए उसकी बजाय अभी जो सर का जो बिल आ रहा है उसमें इनफैक्ट वी आर ए लवली सरप्राइज कि कॉन्ट्रैक्ट डिमांड इनका यूज कॉन्ट्रैक्ट डिमांड वाज अराउंड 3400 किलोवाट. बट वो जब पीक हुआ, जिस पीरियड में वो पीक हुआ, जिस आधे घंटे में पूरे महीने में वो पीक हुआ, उस पीरियड में देयर वाज वेट जनरेशन आल्सो कमिंग substantially. So for the last 2 months he has been charged only 2625, which is the 75% of 3500. राइट. ऑटोमेटिकली उसका बेनिफिट मिलेगा. हाँ बिल्कुल, तो वो कॉन्ट्रैक्ट डिमांड का रिडक्शन हो ही गया, मतलब इन वे वो उस तरीके से होगा. सही बात. पर 75 रूल्स में तो कॉन्ट्रैक्ट डिमांड के 85% चार्ज कर रहे हैं. नहीं 75 70 का रूल चल रहा है अभी एक माह 1 अप्रैल से शायद और बढ़ गया, अब 75 हो गया. तो वो एक इनका 75% बेस क्रिटिकल वैल्यू अपन निकाल सकते हैं एक स्टैंड बाय डिमांड का भी उसके साथ में ऐड करके. बहुत रिस्क, नॉट वर्थ इट. चलो आगे.
प्लस एक और जो इम्पोर्टेंट कंसिडरेशन है कि बैंकिंग रिक्वायरमेंट इन सोलर इज हायर एज कम्पेयर टू विंड, बिकॉज ये मॉडल जो है अवरली बेसिस पे हमारा बना हुआ है। 8760 आवर्स का विंड का जनरेशन का डेटा है, सोलर का जनरेशन का डेटा है, और उस पे हम ये सारा एनालिसिस रन करते हैं। तो बेसिकली सोलर का जनरेशन क्योंकि 7-8 घंटे ही होता है, और उसके बाद हमें ज्यादा जनरेट करके उसको रात में सेटल करना पड़ेगा, तो बैंकिंग रिक्वायरमेंट सोलर में बढ़ जाती है। सो सोलर की जो बैंकिंग रिक्वायरमेंट है वो फॉर द सेम क्वांटम ऑफ पावर फ्रॉम सोलर एंड फॉर द सेम क्वांटम पावर फ्रॉम विंड इज अबाउट 2.2 टाइम्स एज कम्पेयर टू विंड। सो फ्यूचर में कभी बैंकिंग का रिडक्शन होगा या कुछ चेंजेस होगा तो उसमें सोलर में इम्पैक्ट ज्यादा आएगा, विंड में थोड़ा कम आएगा। मतलब सोलर में लॉस ऑफ यूनिट ज्यादा होता है। हाँ, मतलब एक आपको तरीके से। बैंकिंग की हेल्प वही देखो 8% है ना अभी, 8 है या 7 है? 8%। 8 है, 8% मतलब लॉस ज्यादा होगा आपका बैंक। Can I move it? Any- नेक्स्ट। ये एक इम्पोर्टेंट शीट है महाराष्ट्र रेगुलेशन से, समरी है, दिस इज जस्ट द समरी। बेसिकली ये जीओए आने के बाद दे चेंज द रेगुलेशन, सो दिस इज एज पर द रिवाइज्ड रेगुलेशंस। एक तो बैंकिंग इज अलाउड ऑन बैंकिंग साइकिल बेसिस व्हिच इज मंथली, आपका जो बिलिंग सेटलमेंट है वो मंथली है, सो मंथली बेसिस पे आपको बैंकिंग अलाउड है। जो इनका 2019 का रेगुलेशंस था उन्होंने एनुअल बैंकिंग दिया हुआ था, सम यूनिट्स आप आगे ले जा सकते थे, बट आफ्टर जीओए दे हैव रिवाइज्ड दैट एंड दे हैव सेड दैट यू कैन ओनली बैंक ऑन ए मंथली बेसिस। सो मंथ के एंड में अगर आपका सरप्लस बच रहा है तो वो दैट यू कैन नॉट यूटिलाइज इन द नेक्स्ट मंथ, वो आपका लैप्स हो जाता है। सो आपको मंथ टू मंथ ही पावर कंज्यूम करना होता है, लैप्स हो जाएगा उसको, दे विल नॉट गिव एनी वैल्यू। नो सेकेंड है उनका कि बैंकिंग जो सेटलमेंट है वो रिस्पेक्टिव टीओडी स्लॉट्स में होगा, एंड इन महाराष्ट्र इट इज क्वाइट यूनिक। व्हाट दे आर सेइंग इज कि योर सेटलमेंट विल बी फ्रॉम हायर टीओडी स्लॉट टू लोअर टीओडी स्लॉट। सो बेसिकली अगर हाईएस्ट टीओडी स्लॉट आपका ये 18 to 22 वाला है जिसमें 1.10 आपको एडिशनल टैरिफ लगता है, सो उस स्लॉट से आप किसी भी नीचे, बाकी सारे स्लॉट्स नीचे वाले हैं, तो बाकी उसमें अगर आपका सरप्लस जनरेशन आया है तो उसको आप किसी भी स्लॉट्स में सेटल कर सकते हैं, मतलब वो पावर आप कहीं पे भी जा सकती है। बट अगर आपका सरप्लस जनरेशन रात में आया है वो आएगा नहीं, अगर आपका सरप्लस जनरेशन डे में आया है 6 to 9 और 12 to 18, तो वो आपका केवल रात में जा सकता है विच इज द लोअर स्लॉट। वो आपका 9 to 12 और 18 to 22 में यू कैन नॉट सेटल सरप्लस जनरेशन ऑफ डे। सो उसका इम्प्लीकेशन ये है कि विंड का क्योंकि यूनिफॉर्म सा जनरेशन है तो नियरली 100% सेटलमेंट मिल रहा है, सोलर में आज की तारीख में 83% सेटलमेंट मिल रहा है। बट इसमें एवरी स्टेट इज नाउ चेंजिंग देयर टीओडी टैरिफ स्ट्रक्चर। बेसिकली दिन में क्योंकि पावर काफी सरप्लस हो रही है, सोलर से काफी पावर आ रही है, मिल रही है सबको, तो दिन को दे आर स्लोली मूविंग इट टू द जो नाइट को वो रिबेट देते थे वो दिन में देना चालू कर रहे हैं। सो ऑलरेडी आंध्रा ने कर दिया है, गुजरात ने नाइट में जो रिबेट थी वो हटा दी है। सो ऑल स्टेट्स आर लुकिंग एट इट। इसमें MERC ने एक स्टडी कराया था जो उनकी वेबसाइट पे है, कंसल्टेंट ने स्टडी किया था, उसमें जो ABPS कंसल्टेंट था उसने जो TOD ब्लॉक्स प्रपोज किए थे, उसने 5 TOD ब्लॉक्स प्रपोज किए थे, जिसमें उसने जो पीक ब्लॉक्स थे वो 16 to 20 बोल रहा है। 16 मतलब कि दोपहर में शाम को 4 बजे जब सोलर डिप होना चालू करता है और मेरी डिमांड, ग्रिड की डिमांड बढ़ जाती है क्योंकि लोग घर में पहुंचना चालू करते हैं, AC वैसी चलने चालू हो जाते हैं, तब उसको बोल ही सेइंग कि दैट शुड बी द पीक, मतलब पीकेस्ट टाइम ब्लॉक। 20 to 24 ऑल्सो इज ए पीक टाइम ब्लॉक। धीरे धीरे वहां पे भी काफी डिमांड आ रही है क्योंकि घरों में आप AC बहुत लग गए हैं और गर्मी भी ज्यादा हो रही है, तो ओवरऑल उस पीरियड में भी डिमांड काफी आ रही है। और 6 to 9 these are 3 peak time blocks. They have suggested 9 to 16 as the lowest time block. 9 to 16 is the maximum solar generation period. 9 बजे से शाम से 4 बजे तक का, उसको उन्होंने लोवेस्ट टाइम ब्लॉक प्रपोज किया है, और रात में 12 बजे से 6 बजे का एक और लोअर टाइम ब्लॉक प्रपोज किया है। तो इस सिनारियो में आपको केवल 40 से 42% का ही सोलर का एडजस्टमेंट मिलेगा, बिकॉज आपका लार्जली यू आर रिस्ट्रिक्टेड टू 9 to 16 टाइम ब्लॉक, वो जो 7 घंटे हैं उसी में आपको सेटल करना पड़ेगा। यू कैन नॉट मूव दैट पावर सब्सटेंशियली टू एनी अदर टाइम ब्लॉक, बिकॉज सरप्लस जनरेशन जो आएगा, अगर आप सोलर प्लांट डालेंगे, सरप्लस जनरेशन जो आएगा वो 9 से 16 में ही आएगा और कभी आ नहीं सकता आपका। और 9 से 16 वाली पावर क्योंकि चीपेस्ट है तो वो आप किसी और ब्लॉक में ले जा नहीं पाएंगे। सो you are restricted, I mean your settlement would be of the order of 40% if you are doing only solar
if and when they change their time blocks, TOD blocks. नेट मीटरिंग का बैंकिंग 9 से 12 वाला भी एडजस्ट होता है, सर मैं ओपन एक्सेस पे ये बात ओपन करूँ। एक्सेस पे होता है। इसमें हाइब्रिड आपने दोनों ओपन एक्सेस लिए, एक केस स्टडी आपने ये भी किया कि एक नेट मीटरिंग और एक विंड ओपन एक्सेस है सर। नहीं गोयनका जी, आज डिस्कशन ओपन एक्सेस पे ही है। वो नहीं ओपन एक्सेस पे है, मगर किसी का नेट मीटरिंग है ये वो तो नेट बोल रहे मीटरिंग गोयनका जी प्लस जो ओपन बोल रहे हैं बात एक्सेस। बरोबर है कि हम अगर आज की परिस्थिति के अंदर में दोनों नहीं हो रहा तो अगर मेरे पास नेट मीटरिंग में सोलर है, मैं विंड को ओपन एक्सेस में डाल दूं, वो क्या होगा? उनका एग्जांपल वही हो गया सर, प्लास्टो का एग्जांपल वही हो गया। वही, 3 मेगावाट का वही चीज 2 मैं मेगावाट की का बात कर सोलर लगा हुआ है बिहाइंड द मीटर सर, और इन्होंने उसी यूनिट में इन्होंने 2 टरबाइन लिए, तो वो आगे बिलिंग एनालिसिस है, तो उसमें इनका दिन का जो ग्रिड से ड्रॉ है बहुत कम हो जाता है, क्योंकि दिन में लार्जली इनका उससे आ जाता है, सोलर से आ जाता है। इनको नोटिस आया नेट मीटरिंग को ग्रॉस मीटरिंग में कन्वर्ट करो। वो तो सर इन्होंने रिप्लाई कर दिया है, वो तो मतलब कल गया है, कल की नोटिस आया तो एक ये so this is the banking settlement in TOD floors. थर्ड है कि जो लिंकेज टू कॉन्ट्रैक्ट डिमांड उन्होंने हटा दिया। पहले ओपन एक्सेस कैपेसिटी कैलकुलेट करने के लिए रिन्यूएबल एनर्जी के लिए दे यूज्ड टू टेक 2 फैक्टर्स, वन इज द कॉन्ट्रैक्ट डिमांड का एक मल्टीप्लाई डालते थे और एक रिजल्टेंट पावर फ्लो का मल्टीप्लाई डालते थे, which was basically calculated on the basis of your KVA connection and the CTR ratio, current transformer ratio. So because GOA has said that you cannot link your open access to contract demand, आप contract demand का restriction नहीं डाल सकते, so उन्होंने प्यार से वो contract demand हटा दिया, but CTR का ratio linkage to resultant power flow उन्होंने अभी भी रखा हुआ है, which is linked to current transformer ratio, CT ratio. So कॉन्ट्रैक्ट डिमांड का लिंकेज उन्होंने हटा दिया है एंड उन्होंने एक और अभी जो अक्टूबर में मॉडिफिकेशन आया था which was part of GOA, they have also said कि both rooftop under net metering and open access are allowed simultaneously. So आप दोनों चीजें कर सकते हैं, rooftop भी कर सकते हैं और open access भी कर सकते हैं, जो गोयनका साहब बोल रहे थे as per the regulation। उसको अभी तक उन्होंने शायद implement नहीं किया internally, but regulation is regulation, they have to provide it, they cannot go other। It's similar to you saying कि भाई टैरिफ बढ़ गया आपका, तो you cannot say कि भाई मैं internally discuss करके decide करूंगा कि मैं पे करूं या नहीं करूं, you have to pay the tariff। So same applies to them also, that regulation आ गया है, they have to implement it। But I think some people they have applied and they have got it also. What's your update on that? Because this is the most important line for today. Rooftop net and metering and open access are now allowed simultaneously. Whether people have got permission under this? इसमें अभी people are in the process of taking permissions। मिला हुआ है ना, नहीं बट ये तो प्लास्टो को तो कर रहे हैं तो मिला है नेट मीटरिंग एंड ओपन एक्सेस दोनों? नहीं नेट मीटरिंग नहीं किया, उन्होंने ग्रॉस में कन्वर्ट किया था, मैंने उसको नेट बिलिंग में कन्वर्ट करवा लिया है। नहीं गोयनका जी, मेरे को नेट मीटरिंग चाहिए। इवन प्लास्टो में भी नेट मीटरिंग के अंदर में नहीं दिया हमने। हाँ तो नहीं किया, वही बात है, वही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नहीं प्लास्टो तो पूरा एक ही है ना। नहीं उनका नेट मीटरिंग नहीं है। अभी बिहाइंड द मीटर बिहाइंड मीटर नेट मीटरिंग, ये लाइन इंपॉर्टेंट है। रियल एडवांटेज तभी है जब नेट मीटरिंग एंड ओपन एक्सेस साथ में है। तो एक और इशू है जो बैंक पावर है, नेट मीटरिंग का भी बैंक पावर और दूसरा ओपन एक्सेस का बैंक पावर। अब उन्होंने लिखा है कि जो प्रायोरिटीज है उसमें रिन्यूएबल एनर्जी को पहले एडजस्ट करेंगे, अब इसमें से सोलर पहले करेंगे या विंड पहले करेंगे? सर उसमें सिंपल है, जो नेट मीटरिंग से पावर आएगा और जो आपका ओपन एक्सेस से पावर आएगा, मान लीजिए दोनों ही सोलर लगा लिया आपने, नेट मीटरिंग तो सोलर ही होगा, विंड नहीं हो सकता, ओपन एक्सेस भी आपने सोलर लगा लिया, तो जो उसका दोनों को वो कंबाइन कर देंगे सोलर, और वो जो है कि सेम टाइम ब्लॉक में अगर आपके पास सरप्लस कंजम्पशन है तो पहले उसमें एडजस्ट करेंगे, नहीं तो लोअर टाइम ब्लॉक में ले जाएंगे उसको। एक अगर जैसे ओपन एक्सेस में करते हैं, सेम फॉर्मूला देने लग एक अगर विंड है और एक सोलर नेट मीटरिंग है, इसके अंदर में कोई भी सेम फॉर्मूला इसको एडजस्ट करेंगे, कोई भी लेना गोयनका जी, फर्क नहीं पड़ेगा ना। नहीं फर्क पड़ता है ना। क्यों? देखिए विंड का करो या सोलर करो, दोनों एक्सेस में। सोलर का जो नेट मीटरिंग के अंदर में बैंक पावर है, वो पावर हमारा लैप्स नहीं होता है। नहीं पहले गोयनका जी, ओपन एक्सेस वाले में लैप्स हो जाएगा। गोयनका जी उनके प्रायोरिटी में लिखा है नेट मीटरिंग वाला पहले होगा, वो पहले क्लियर किया है, पहले नेट मीटरिंग वाला एडजस्ट होगा। उन्होंने प्रायोरिटी में लिखा ओनली रिन्यूएबल एनर्जी इज प्रायोरिटी, दैट्स ऑल। नहीं ये नहीं लिखा मैं वो रेगुलेशन solar पढ़ता है हूँ है। ठीक, देखते हैं बात। आगे बढ़े, आगे चलते। नहीं एक मिनट, अभी आप एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बोल रहे हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सबके नोट में आना चाहिए। यदि टीओडी टाइम ब्लॉक्स चेंज होते हैं, अभी प्रपोज आप बोल रहे हो, बट इफ टुमारो दे गेट चेंज्ड
टुडे आई हैव सेट अप अ यूनिट बेस्ड ऑन माय एग्जिस्टिंग टाइम ब्लॉक। Yes. मेरे कैलकुलेशंस भी उसके हिसाब से गए हैं। अब टाइम ब्लॉक चेंज होगा तो रूल तो उस समय का वही लगेगा जो उस समय रहेगा। तो देन वी आर इन अ स्टेट ऑफ कंफ्यूजन। We do not know exactly what is going to be the this thing. तो propose जो है, I think it is very important for us to note it कि आगे जाके regulations ये हो सकते हैं। तो ये बहुत important है कि ये regulations के हिसाब से हम plan करें। प्लानिंग जो है आपको नए रेगुलेशन के हिसाब से करना चाहिए। रेगुलेशन आने के पहले हो चुका, मतलब खत्म हो गया है। आपका कहना है कि भाई टाइम ब्लॉक चेंज नहीं होगा? पहले जो ड्राफ्ट आया था ना, उसके अंदर में प्रपोजल में था। नहीं गोयनका जी, लेकिन जैसे दूसरे स्टेट्स ने कर दिया है, हाँ। हो सकता है महाराष्ट्र स्लो गया हो, महाराष्ट्र आगे जाके कर देगा। अब यहाँ पे हमारे पास करेगा तो सोलर है, एक्स्ट्रा है। करेगा तो है ही। मेरे हिसाब से करेगा। ये तो होना ही है। अब 1 साल में होगा, 2 साल में होगा या 3 साल में होगा, दैट इज द ओनली थिंग दैट इट विल हैपन इन ऑल स्टेट्स जहाँ पे भी तो माय सजेशन इज एवरीबॉडी शुड नोट दिस डाउन एंड एज पर दिस ओनली यू शुड प्लान, बिकॉज होगा तो होगा, बिकॉज एक्सेस जनरेशन तो आना ही है सोलर के कारण, राइट। ये बेसिकली सर लास्ट 5 साल का टैरिफ का कंपैरिजन है। तो इसमें आप अगर देखेंगे तो टैरिफ आपका काफी तेजी से बढ़ा है पिछले 5 सालों में। जो पहला कॉलम है एनर्जी चार्ज, दैट इंक्लूड्स बिलिंग चार्ज। उसके बाद एफएसी है। एफएसी अप्रैल मतलब 2021 और 21-22 में 0 था, बट उसके बाद अच्छा खासा लग रहा है। So this is total variable and then total charges. This is calculated at 11 kV. 33 kV में charges और बढ़ गए हैं, क्योंकि 33 kV में क्या हुआ है कि before 22 जो आपका बिलिंग चार्ज लगता था वो 9 पैसे और 8 पैसे लगता था, जो अब बढ़ के 60 पैसे हो गया है। उन्होंने कंबाइन कर दिया। पहले 33 और 11-22 अलग होता था। ये सबका दर्द है, सबको पता है, आप इससे आगे बढ़िए। नहीं, लेकिन एक 6.2 का CAGR से अपना रेट तो हाँ, ये इंपॉर्टेंट लाइन है कि 6.2% से एवरी ईयर बढ़ रहा है। और इसमें नॉट ओनली दैट, इसके अलावा आपका उन्होंने और भी चेंजेस किए। एक कॉन्ट्रैक्ट डिमांड पहले 50% तक अलाउड था चार्जेस, जो अब उन्होंने बढ़ा के 75% कर दिया है। ये आगे और बढ़ने वाला है क्या 75 से? CAGR बता दीजिए। नहीं, ये लिमिट है, 75 लिमिट है। कॉन्ट्रैक्ट डिमांड से सर किया, टोटल चार्जेस में किया सर, तभी ज्यादा आ रहे हैं। लिया क्या आपने इसमें? टोटल चार्जेस में लिया सर। एवरी ईयर 5%। और क्या बोल रहे हैं सर? कॉन्ट्रैक्ट डिमांड नहीं हो गया, बात होगी 75 पे कैप है करके, इससे ऊपर नहीं बढ़ेगा। 75 पे कैप नहीं है ना, राइट? नहीं 75 पे कैप है आज। कॉन्ट्रैक्ट डिमांड वो मैक्सिमम 75 करेंगे, इसके बियॉन्ड चार्ज करेंगे क्या तो मुझे नहीं लगता करेंगे, बट एमईआरसी कर सकती है कुछ भी। टिपिकली बाकी स्टेट्स में 80-85 तक होता है। हाँ, तो हो सकता है फिर यहाँ पे भी कर दे। गेट रेडी फॉर दैट। गेट रेडी। घर बैठे बिना पावर पहले पावर फैक्टर इंसेंटिव भी मिलता था 2-3 साल पहले तक आपको 7% तक, वो 0% हो गया इन्होंने। बिलिंग उन्होंने KWH से KVA चेंज कर दिया, तो जिसका भी पावर फैक्टर लोअर है उसको उसमें भी हिट हो रहा है। और लोड फैक्टर जो इंसेंटिव है वो अभी कंटिन्यू हो रहा है, मतलब एज ऑन डेट उसमें चेंज नहीं किया। ये सर दिस इज द टेबल दैट वी हैव कंस्ट्रक्टेड बेसिकली टू शो की व्हाट इज द ओपन एक्सेस कैपेसिटी अलाउड इफ यू हैव कॉन्ट्रैक्ट डिमांड इन अ सर्टेन रेंज, एंड दिस इज बेस्ड ऑन MSc/DCL सर्कुलर where they have defined for the range of contract demand and for a given voltage level at which you are connected, they have defined the standard CTR ratio that you have to implement or you have to do, and for that CTR ratio, what is the open access capacity that you can go up to? That is basically simply it's on This the is basis of किलोवाट, राइट? किलोवाट में है ना, वो यूनिट मिसिंग है वहां पे अगेन। हाँ सर, Right open वाला? access capacity आप पूछ रहे हैं? हाँ, Sorry, वो in kilowatt है ना? किलोवाट है। सो अगर 11 kV पे है और आपका कॉन्ट्रैक्ट डिमांड मान लो 1200 है, which is 1001 to 2000, तो आपका CTR ratio would be 100 typically, and for that you can go up to 2685. So चाहे आपका कॉन्ट्रैक्ट डिमांड 1100 हो या 2000 हो, your allowed open access capacity in that range would be 2685 if you are connected at 11 kV. And similarly, इसमें पुनीत जी जो 2685 है, इसके ऊपर में फिर से AC to DC फैक्टर करें तो और हाँ वो आप कर सकते हैं। सोलर में 1.4 होगा। सोलर में होगा, विंड में तो वही AC और DC। हाँ, बट सोलर के अंदर में एडिशनल नहीं, एक सेकंड, ये AC कैपेसिटी का लिमिटेशन है प्रतीक। अच्छा, DC लगाना है नहीं लगाना तेरे हाथ में है। तू 1.2 लगा, 1.4 लगा, 2 डबल लगा, वो दैट्स योर चॉइस, उसमें कोई क्वेश्चन भी नहीं पूछेगा। इन्वर्टर की लिमिटेशन है ये, ओके। जनरेटिंग इन्वर्टर की, AC की। सो 11 kV में अगर 1000 to 2000 है मेरा, मतलब 1200 अगर मेरा कॉन्ट्रैक्ट डिमांड है, तो आई विल टिपिकली हैव अ CT रेशियो ऑफ 100, एंड उसमें मैं 2685 तक कॉन्ट्रैक्ट डिमांड पे जा सकता हूँ।
जैसे 1200 में भी हम लोग 2685 जा सकते हैं, 1100 में भी आप 2685 जा सकते हैं और और 2000 में 2000 में भी 2685 जा सकते हैं। रहेगा। और 1900 का तब पर वो जनरेशन हाँ, 2000 में बोला। एक्सेस जनरेशन आपका वेस्ट हो जाएगा। अरे उसके लिए जब भी 1900 पे आएगा तो 1900 कर लो, वो 2001 कर लो। हाँ, but आजकल MSCDCL is also become very smart. वो भी they also monitor कि आप जो कॉन्ट्रैक्ट डिमांड आपने लिया है, are you reaching to that contract demand or not? So नहीं, वो तो पैसे चार्ज ही कर रहे हैं ना, 70% तो लिए रहना पैसा। similarly 22 kV का और 33 kV का भी same way it happens. So अगर 22 kV में हम 1000 to 2000 है तो हमारा जो CT ratio they have defined is 50 and because 11 kV से 22 kV डबल हो गया but CT ratio 100 से 50 हो गया तो that number is remain same 2685. ये पीपीटी हम ये ग्रुप में डाल देंगे, किसी को फिगर्स चाहिए हम। हाँ, ये अच्छा है वो, ये वाला। ठीक है ना, आगे बढ़िए। मैं आपको गलती से पुनीत जी बोला, अपना एक बार नाम इंट्रोड्यूस पुनीत गोयल, पुनीत गोयल सर। So basically जो सारे regulations हैं और ये जो सारे policies हैं इसमें regulation एक मिनट, इसमें अब ये जो आपने CTR बताया, तो जैसे जो whatever the value is coming now in open access as of today in Maharashtra, it can be a split of wind and solar both. हाँ, as long as you're limited to that That number, जैसे अगर हमारा 3 मेगावाट है मेरा open access ओपन एक्सेस में, मैं उसको 8 मेगावाट तक जा सकता हूँ एज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 5 3 कर सकते हैं 5 3 4 4 कुछ भी कर सकते 33 केवी का है तो हैं 33 केवी का 11 पे नहीं है, 11 पे 5 33 का ही हमारा तो 3 मेगावाट के आसपास में हम अगर एक मिनट प्रतीक, दिस इज थियोरेटिकल, प्रैक्टिकल के बारे में मैं लास्ट में बताऊंगा कुछ, बट दिस इज थियोरेटिकल। या बताओ अभी बोल, प्रैक्टिकली क्या इशू आ रहा है। प्रैक्टिकली दे आर रेस्ट्रिक्टिंग कि भाई हमारे ग्रिड में कैपेसिटी नहीं है। गोयनका जी इज अ बेटर पर्सन टू आंसर दैट, बिकॉज ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इश्यूज दे विल नॉट लेट यू हैव द परमिशन। ओके इफ यू से जैसे सपोज तेरा 3000 का कॉन्ट्रैक्ट डिमांड है 3000 किलोवाट का, यू विल से मैं ओपन एक्सेस का प्लांट लिया हूं, मुझे उसमें से 5 मेगावाट लेना है और ये मेरा टरबाइन है, इससे 3 लेना है। तो जहां 5 के लिए जब तू परमिशन अप्लाई करेगा, दे विल से हमारे वहां के सिस्टम में 5 मेगावाट लेने का कैपेसिटी नहीं है, दे विल नॉट गिव यू परमिशन। वो प्रॉब्लम आ रही है। बट सर अभी जैसे इनका भी 3500 है कॉन्ट्रैक्ट डिमांड, इन्होंने 4200 का लिया और इनको मिला है, तो ये क्या विंड का है, मैं सोलर के लिए बोल रहा हूँ। नहीं, लॉट ऑफ ये पीपल वो ये जो में सर प्लास्टो करके मिल रहा, वहाँ कैपेसिटी है, फिजिबिलिटी है। मोता सब जो बोल रहे हैं यार फिजिबिलिटी नहीं, वहाँ प्रॉब्लम है। जहाँ 3000 मांग रहा है, 3 जने जिनको नहीं मिल रही जो वेट में है, मुझे मालूम है। तो आप फिजिबल का है वो कैपेसिटेशन में कैपेसिटी है नहीं, ये भी वहाँ पे है। वो हम लोग टेकअप करेंगे। दिस इज समथिंग टू बी टेकन बाय वीआई। फिजिबिलिटी का जहाँ तक सवाल है, आपका लोड डिमांड कितना है वही फिजिबिलिटी, हाँ, exactly. वहां से और यहाँ थोड़ी आ रहा है। वही एग्जैक्टली तो यहीं के ग्रिड से मिल रहा है पावर। बराबर गोविंद, लेकिन वहाँ इवैक्यूएशन की फिजिबिलिटी भी तो चाहिए ना। फिजिबिलिटी वहाँ की चाहिए, वही मैं बोल रहा हूँ और फिजिबिलिटी यहाँ की चाहिए। वो तो यहाँ की चाहिए, लेकिन इवैक्यूएशन की जगह पे तो फिजिबिलिटी चाहिए वो ना। तो सर इंडिपेंडेंट हो गया, वो तो आप ले ही रहे हो, जब आप प्लांट डाल रहे हो तो आप ले ही- जरूरी नहीं ना, आपको प्लांट ही नहीं डालने देंगे। मैं वही कह रहा हूँ, जब वो 5 मेगावाट का प्लांट डालने जाएगा, उसको इवैक्यूएशन करने को देंगे ही नहीं वहाँ पे। देखिए, वो अलग डिपार्टमेंट है, वो ये नहीं देखता कि आप फिर पावर कहाँ नहीं, मेरा नहीं देखता, लेकिन वहां वो देगा ही नहीं परमिशन, तो वो लग ही नहीं पाएगा ना प्लांट। पॉइंट वो है। कनेक्टिंग हाँ, वो दे रहे हैं सर, ऐसा नहीं है, रेस्ट्रिक्ट नहीं कर रहे हैं, जहाँ पे आप आपके पास है। हम आपको ट्रांसफर कर नहीं सकते है, नहीं मिलेगा आपने, बट देयर आर लॉट ऑफ सबस्टेशन जहाँ पे कैपेसिटी है, तो यू हैव टू लोकेट दैट सबस्टेशन एंड वो उनकी एक लिस्ट आती है, दे आर पब्लिशिंग ए लिस्ट ऑफ सबस्टेशन जहाँ पे कैपेसिटी अवेलेबल है। एवरी लिस्ट कहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट MSCDCL की वेबसाइट पे हम आपको इवैक्यूएशन की कैपेसिटी अलग रहेगी, ड्रॉल की कैपेसिटी अलग रहेगी। you will be allocated capacity which is already available with us. राइट, और कोई नॉर्मली फॉर्मेट नहीं होता सर। Okay. मिलेगा आपको इधर एडजस्ट करना हाँ, है। exactly. ठीक। इसमें दिमाग लगाने का मतलब ओके। सो हाँ सर, सिटी तो चेंज भी किया जा सकता है, आपने जो रिस्ट्रिक्शन बताया ज्यादा रिक्वायर्ड तो सिटी कैन बी एनहांस, उसमें क्या दिक्कत सर बट वो कॉन्ट्रैक्ट डिमांड फिर आपको एनहांस करना पड़ेगा, बिकॉज़ उसी रेशियो में। वो करेगा ना लोग। हाँ, तो वो मतलब जो भी थोड़ा बहुत है ओपन एक्सेस का रिस्ट्रिक्शन आपने जो बताया सिटी का, वो ठीक है करंट के हिसाब से। अगर ज्यादा ओपन एक्सेस है तो सिटी बढ़ा सकते हैं उसको। हाँ, सिटी बढ़ा सकते हैं, बट उसके लिए कॉन्ट्रैक्ट डिमांड बढ़ाना पड़ेगा, फिर हाँ। कॉन्ट्रैक्ट डिमांड के चार्जेस लगेंगे आपके कॉन्ट्रैक्ट डिमांड। देखिए वो वर्कआउट हो जाते हैं। आपको देखा एक ऑप्शन है,
आगे So basically ये जो सारा discussion है इसके ये 6-7 implications हैं that we should consider when we are planning our open access capacity or sourcing of power from renewable energy sources. So उसमें सबसे पहला है कि एक आपका open access capacity का restriction है which is coming on the basis of CT ratio जो हमने पिछले समय में देखा. So इसमें solar में typically generation would be around 21 to 22 lakhs per megawatt per annum. Wind may it will be like 31-32 lakhs per megawatt per annum depending upon site and wind turbine that you have chosen. So wind ka typically you can target a capacity of nearly 1.5 times of solar for the same megawatt of open access capacity. सेकंड है बेसिकली सेकंड है कि अगर आपका छोटा प्लांट है, अगर आपका कंजम्पशन ही टोटल मान लीजिए 20 लाख है, 40 लाख है, 50 लाख है, तो उसमें विंड का ऑप्शन नहीं बैठेगा क्योंकि विंड की टरबाइन जो है टिपिकली 2.1 या 2 मेगावाट से ही चालू होती है. तो 70-75 लाख तो मतलब 65-70 लाख तो जनरेशन आएगा ही उनसे. तो अगर आपका प्लांट ही छोटा है, यूनिट छोटा है, तो उसमें आपको फिर सोलर ही करना पड़ेगा. अगर 50 लाख 60 लाख तक है आपका साइज, तो उसमें सोलर ही करना पड़ेगा. विंड विल बी सुटेबल अगर आपका कंजम्पशन जो है 70-75-80 लाख या उसके अबव है. इसमें आप दो यूनिट्स को कंबाइन भी कर सकते हैं, मतलब सेम एंटिटी के अंदर अगर दो यूनिट अलग अलग यूनिट हैं 40-40 लाख की, तो 80 लाख भी बन सकता है दोनों यूनिट को कंबाइन करके. आप सोलर और विंड दोनों में ओपन एक्सेस करके ले रहे हैं, आप ओनली विंड में कर रहे हैं? दोनों कर रहे हैं. तो छोटे कंज्यूमर जो 100 किलोवाट वाले वगैरह हैं, इनका भी ओपन एक्सेस करके दे रहे हैं? इनका भी हो सकता है सर. एक ये टेस्ट करना है अभी, मतलब MSB का प्रोसीजर हुआ है कि नहीं, ये एक बार टेस्ट करना है. बट ये 100 किलोवाट तो आ चुका है, आएगा ही. हाँ वो तो आ गया. हम कर्नाटक में कर रहे हैं ऑलरेडी. कर्नाटक में इनफैक्ट हम अभी आ जाएगा तो मतलब उसमें CPP कैसे करोगे? गिराएगा एक प्लांट के अंदर में से आपको कई कंज्यूमर का ग्रुप बनाना पड़ेगा. नहीं सर, वो हर कंज्यूमर का मान लीजिए 100 किलो, अगर एक कंज्यूमर के लिए 400 किलोवाट का प्लांट लग रहा है, तो वो 400 किलोवाट का अलग आइडेंटिफाइड प्लांट होगा जिसका मीटरिंग होगा और वो पावर उस कंज्यूमर को फ्लो होगी. और सिमिलरली किसी और का 500 का लग रहा है तो वो अलग मीटरिंग प्लांट में से डिवाइड करोगे? हाँ, अलग अलग मीटिंग होगा सर. जैसे हर टरबाइन की मीटिंग अलग अलग है. जैसे सर के 2 टरबाइन होगा तो हर की मीटिंग की अलग अलग. जैसे आपका मान लीजिए 10 मेगावाट का प्लांट लगा है, 100 किलोवाट उसमें से किसी को होना है तो उसकी भी अलग मीटरिंग करेंगे 100 किलोवाट. हाँ, 100 किलोवाट के लिए सर प्लांट जो लगेगा 300-400 किलोवाट का लगेगा ना, मतलब इन द सेंस कि उसका EC-DC रेशियो होगा, DC-AC रेशियो होगा, प्लस सोलर के मीटर अलग अलग रहेगा इवैक्यूएशन में. हाँ, मीटर भी अलग रहेगा सर और ट्रांसफार्मर तो खर्चा थोड़ा बढ़ेगा, डेफिनेटली बढ़ेगा. ट्रांसफार्मर भी अलग अलग. ट्रांसफार्मर क्योंकि मीटर अलग है, ट्रांसफार्मर अलग करना पड़ेगा, मतलब आइसोलेट करना पड़ेगा हर को. तो LT साइड में भी लग सकता है. LT साइड का परमिशन अभी तक दिया नहीं सर इन कंट्री में कहीं पे भी सर. हमने तो वी वर ट्राइंग फॉर हाइब्रिड की, हमने तो वी हैव इंटीग्रेटेड हाइब्रिड एट टरबाइन लेवल इटसेल्फ. टरबाइन के नीचे ही हमने फुटप्रिंट पे ही सोलर लगाया है एंड वी वांटेड LT साइड मीटरिंग देयर, बट गुजरात हैज नॉट बीन अलाउइंग दिस. वी हैव बीन लॉबिंग दिस फॉर अ लॉन्ग टाइम. कर्नाटक में हमने किया है ये सिस्टम, बट गुजरात LT साइड पे मीटरिंग बोलता है ही नहीं, हमारे पास सिस्टम ही नहीं है. विल डिस्कस दैट आगे. थर्ड है कि मंथली कंजम्पशन है. सो उसमें सोलर का वेरिएशन इज मच लोअर एज वी हैव सीन. विंड का वेरिएशन इज हायर. द ओनली अदर पॉइंट दैट नीड्स टू बी कंसीडर्ड इज कि क्योंकि महाराष्ट्र में कैपेसिटी रिस्ट्रिक्शन है आपका, सो विंड इज बेटर बिकॉज उसमें जो लोएस्ट जनरेशन मंथ है दैट इज आल्सो सिमिलर और हायर देन द सोलर जनरेशन इन दैट मंथ जो हमने देखा था. बैंकिंग रिक्वायरमेंट सोलर में ज्यादा है, विंड में कम है. वी हैव सीन दिस. This lower time block settlement and change in TOD time blocks, ये दोनों का इम्पैक्ट सोलर पे सेकंड स्पेशली सेकंड वाले जो चेंज इन टाइम TOD ब्लॉक्स होंगे जब, तो सोलर पे इम्पैक्ट बहुत भारी आएगा. विंड पे उसका इम्पैक्ट नहीं है क्योंकि विंड का राउंड द क्लॉक जनरेशन है. और रूफटॉप एंड ओपन एक्सेस को उन्होंने साइमल्टेनियसली अलाउ कर दिया है. We have discussed this. So basically, this is the summary of implications. इसमें आपने कॉस्ट का कंपैरिजन नहीं डाला, वो भी इसमें डाल सकते थे तो बेटर हो जाता. आ रहा हूँ सर. आ रहा है उसमें, ठीक है. So the next part is basically जो sourcing analysis है open access में, इसमें हमने what we have done is we have taken 2-3 case studies and finally we have shown कि how Plasto का 1 जून मंथ का सेटलमेंट हमने दिखाया है. So वो जो 2 case studies हमने लिए, एक for a typical consumer where who is not taking a load factor benefit. Second हमने लिए जो स्टील टाइप का कंज्यूमर होता है जिसको लोड फैक्टर बेनिफिट लेता है. सो उन दोनों सिनेरियो में हाउ इज द कॉस्टिंग ऑफ ग्रिड पावर, ओपन एक्सेस पावर, हाउ इज द डिफरेंट ऑप्शंस ऑफ सोलर एंड विंड आर कमिंग, वो हमने वी हैव डिटेल्ड आउट. So basically the assumption that we've used for this analysis are here basically.
सोलर का हमने डीसी साइड में कॉस्ट जो पकड़ा है 3.4 करोड़ पर मेगावाट पकड़ा है, जीएसटी उसके ऊपर है। जो एसी साइड में इन आवर केस 1.4, दिस बिकम्स 4.76। विंड का हमने दिस इज 2.1 मेगावाट सुजलॉन टर्बाइन, ऑल इंक्लूसिव कॉस्ट 16.90 पकड़ा है, which is about 19.25. Per megawatt DC generation of solar is 15 lakhs, 15.4 lakhs, wind is 68 lakhs. So on a per unit of generation, capital cost for solar is 22 rupees per unit, per annual unit, and for wind it is 24.8 per annual unit. So wind का जो है करीब 10%, 10 से 12% ज्यादा है capital cost. दूसरी यूनिट में इंटरेस्ट कॉस्ट जोड़ा गया, सर ये capital cost बोला है. नहीं कैपिटल कॉस्ट, इंटरेस्ट ये जो ऊपर वाला जो capital cost नंबर लिखा है सर, केवल उसी को capital cost divide by units. इंटरेस्ट का भी किया वो आगे करना आगे. So this is the capital cost. We have assumed that GST as a industry you will be able to take. विंड का समझा नहीं सर। सर विंड का 68 लाख का जनरेशन है हाँ। और 9 और आपका 16.90 का कॉस्ट है कैपिटल करोड़ में, Basic cost. जो 16.90 डिवाइड बाय 6.8 पर मेगावाट कॉस्ट मतलब अगर हम उल्टा करेंगे 16.90 डिवाइड बाय 0.68 सर, 0.68 Per megawatt is 16.9 divided by 2.1. That is your per megawatt cost for wind. 8 करोड़ रुपए। हाँ 8 करोड़ के आसपास. 32 lakh units is the generation per Yes, megawatt, 30 per megawatt per year. Yes. बढ़िया ना आगे. हाँ. तो और प्लस हमने ये assume किया है कि जीएसटी क्रेडिट अवेलेबल रहेगा आपको एज इंडस्ट्री, यू विल बी एबल टू टेक द जीएसटी क्रेडिट ऑफ कैपिटल कॉस्ट में जो जीएसटी लग रहा है, दैट यू विल बी एबल टू टेक एज इनपुट क्रेडिट इन योर sales of your product. You will be able to utilize the tax break that is available on accelerated depreciation. लोन हमने 8.5% और 12 साल पकड़ा है, इसमें डिस्कशन हो सकता है बट बहुत ज्यादा इम्पैक्ट नहीं होगा. We can take it 9.5%. We can reduce the period of loan 8 साल कर सकते हैं. कैपिटल इन्वेस्टमेंट में पकड़ते नहीं है इसको, क्या चीज है? कैपिटल इन्वेस्टमेंट में इंडस्ट्री के नहीं पकड़ेंगे गोयंका. ये नहीं पकड़ा पकड़ते कर ही रहे हैं हर बार. सब्सिडी नहीं पकड़ेंगे. सब्सिडी नहीं पकड़ेंगे। सब्सिडी की अलग बात है. आपके प्लांट में सब्सिडी की बात ही नहीं चल रही, बट बुक्स में कैपिटल में जाता है. डेट इक्विटी हमने 75 सोलर भी नहीं आता, ये भी नहीं आता। डेट इक्विटी कैपिटल इन्वेस्टमेंट में पकड़ते हैं। सब्सिडी नहीं. डेट इक्विटी जो है हमने 75-25 पकड़ा है, which is the typical basis on which banks are financing these loans. इसमें विशाल भाई एक जैसे सेकंड हैंड और इसके बीच में कोई कंपैरिजन आपने वो भी है सर, वो है. इसमें सोलर का एनुअल मेंटेनेंस 4 लाख पकड़ा है, इसमें थोड़ा कम ज्यादा हो सकता है बट उससे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट नहीं होगा. विंड का 19 लाख पर टरबाइन पकड़ा है, वो दैट इज वन पर टरबाइन. सोलर का 4 लाख जो है पर मेगावाट पीक है, पर मेगावाट डीसी है. विंड में 2 साल का फ्री ओएनएम भी होता है, सो दैट इज देयर. देन एक बीओपी बैलेंस ऑफ प्लांट का कॉस्ट भी होता है, वो 4 लाख पकड़ा है और 4% का एनुअल एस्केलेशन पकड़ा है. और उसके अलावा जो कॉमन ऑपरेटिंग एजम्पशंस है वो ये है कि आप लोग टिपिकली 33/11 केवी पे हैं, 33/22/11 पे हैं. 0.98 का ट्रांसमिशन चार्ज पकड़ा है. ट्रांसमिशन चार्ज एक्चुअली महाराष्ट्र में 48 पैसा है, बट डबल लगाते हैं, तो 98 गलत हो गया, सुनना चाहिए. वो पहले 2 या 3 बार नहीं लगता है, बाद में लग जाता है. सर का वही हो रहा है, पहले एक बार 48 लगा है, सेकंड बार 60 लगा है, थर्ड बार 70. वो ऐसे ही है, 72 वो एवरी टाइम इंक्रीज कर रहा है. तो ट्रांसमिशन लॉस 3.18% है. व्हीलिंग चार्ज 60 पैसा है जो आपके इलेक्ट्रिसिटी बिल में भी आता है. फिर व्हीलिंग लॉस 7.5% है. बैंकिंग चार्ज डिपेंडिंग अपॉन द बैंकिंग लगेगा. सो ये अभी मैंने एक नंबर हमने ले लिया 1.69%. उसके अलावा डिस्काउंट रेट 12% है एंड बेसिकली इंश्योरेंस 0.15% है ऑपरेटिंग पीरियड का. डिप्रिसिएशन हमने एक्सेलरेटेड डिप्रिसिएशन 40% अलाउड है वो लिया है. और टैक्स रेट आपका एज्यूम किया 25.17%. कि पुरानी इंडस्ट्री नई इंडस्ट्री होगी तो 15 का 17% के आसपास होगा. लाइफ कितना है दोनों का कंपैरिजन? 25 साल. सो जो नए पैनल्स आ रहे हैं सोलर के उनकी 30 साल की लाइफ है. अब जो बाईफेशियल ग्लास टू ग्लास आ रहे हैं, अभी तक 25 होता था सोलर का. विंड की जो लाइफ है वो 25 साल है. इसमें डीरेटिंग का एक फैक्टर है. सोलर में आपका 0.5 या 0.7 से कम होता है ये. विंड में ऐसा नहीं है. विंड स्टेबल रहता है जनरेशन ईयर टू ईयर. विंड में इंश्योरेंस कॉस्ट एवरी ईयर बढ़ती जाती है. नहीं सर, 0.15 ही रहता है. जैसे गाड़ी में होता है, जीरो डेप्थ पे ही चलते हैं, मतलब यू टेक इट एट द कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलेशन. सो
So ये जो analysis है, this we have done it for a consumer who is not taking a load factor benefit. मतलब उसका जो consumption है वो थोड़ा कम है as compared to the contract demand that he has taken, and therefore he is not able to take the load factor benefit. So उसका demand charge थोड़ा higher side में होगा because obviously उसका consumption थोड़ा कम है. Wheeling charge 60 पैसा है, energy charge 8.36 है. ये to reduce the number of rows ये FAC bulk rebate tax on sale combine कर दिया, तो वो 38 पैसे के आसपास है. इसमें इंक्रीमेंटल कंजम्पशन रिबेट नहीं पकड़ा है क्योंकि वो कॉस्ट पीरियड के लिए ही है. फ्रॉम पेमेंट डिस्काउंट टिपिकली 9 पैसा होता है, सब्सिडी आपको 50 पैसे की मिलती है. तो ये सब मिला के आपकी जो कॉस्ट है वो 9 रुपए 90 पैसे की है. और इसमें अगर CD 2900 का है, CT रेशियो 50 का है और वोल्टेज 33 है. किस बात की बताया गोयनका जी VM का इन्होंने assumption लिया है. VM का लिया। तो आपका जो अलाउेबल कैपेसिटी है वो 4 मेगावाट हो गया, 4028 किलोवाट हो गया. तो इसमें बेसिकली वी हैव रन सिनेरियोस कि हम कितना सोलर लगा सकते हैं, कितना विंड लगा सकते हैं. सो सोलर मेगावाट पीक अगर मेरा 4 मेगावाट का अलाउेबल कैपेसिटी है तो उसका 1.4 टाइम्स 5.6 हो गया. और तो मैं 5.6 मेगावाट पीक तक सोलर लगा सकता हूँ, DC तक सोलर लगा सकता हूँ. अगर मेरा विंड है ओल्ड टरबाइन है तो वो टिपिकली 1.25 मेगावाट की सुजलॉन्गी टरबाइन्स मिलती हैं. तो 1.25 का अगर मैं 4 को 1.25 से डिवाइड करूं तो 3.22 तक लगा सकता हूं. सो बेसिकली इट बिकम्स 3 इन द केस ऑफ विंड. 3 टरबाइन्स आई कैन पुट फॉर ओल्ड टरबाइन्स. अगर मैं नई टरबाइन डाल रहा हूं और नई टरबाइन में 2 ऑप्शन है, एक सुजलॉन्ग का मतलब 2 ऑप्शन हमने यहाँ पे लिए, एक 2.10 और एक 3.15 सुजलॉन्ग की है दोनों. तो उस केस में अगर 3.15 की है तो मैं एक ही टरबाइन डाल सकता हूँ. 2.10 में भी मैं एक ही डाल सकता हूँ बिकॉज मेरा जो रेशियो 1.92 आ रहा है और मेरे को 4 ही अलाउड है, तो मैं एक ही टरबाइन डाल सकता हूँ. तो उसके साथ मैं लेकिन क्योंकि मेरे पास सरप्लस बचा हुआ है तो मैं सोलर डाल सकता हूँ. तो अगर मैंने 2.1 की एक टरबाइन डाली है तो मेरे पास 1.9 का सरप्लस ओपन एक्सेस बचा हुआ है, जिसको मैं 1.4 टाइम्स करके 2.7 तक का सोलर डाल सकता हूँ मेगावाट की. और अगर 3.15 की टरबाइन डाली है तो मैं 1.2 मेगावाट पीक तक सोलर डाल सकता हूँ. सेपरेट प्रोजेक्ट्स बट ये मैं डाल सकता हूँ. गोविंद जी आर यू श्योर कि हाइब्रिड को नहीं कंसीडर कर रही है स्टेट गवर्नमेंट? नहीं सर, हम तो रिप्रेजेंट कर चुके हैं. Sure है ना हाँ एकदम? सर, आप उत्तर से मिल चुके हैं. तो ठीक है, विल टेक अप उस मैटर को. नहीं अभी भी हाइब्रिड के अंदर मैंने हाइब्रिड बिल्कुल ही नहीं करेंगे. सर वो हाइब्रिड को ऐसे काउंट कर रहे हैं कि अगर Separate आपने 20 मेगावाट सोलर लगाया, 70 मेगावाट विंड लगाया, सेम साइट पे लगाया, आप बोलोगे कि मुझे 70 मेगावाट का ही इवैक्यूएशन दो, वो बोलेंगे नहीं आप 100 मेगावाट का दो. हाँ, वो 100 का ले बोलेंगे ना. हाँ. हाँ ठीक है, वो तो है ना अपने यहाँ. वो तो लगा मतलब सकते कहीं पे भी. कॉम्बिनेशन अभी क्या कंफ्यूजन हो उसमें क्या गया होता है ना सर कि कि कॉम्बिनेशन कर सकते हैं लेकिन आपको लिमिटेशन है कि आपको उसमें जितने ओपन एक क्या होता है ना सर, विंड 100 की पॉइंट से ऊपर नहीं. विंड की साइट्स कम होती हैं. हाँ, जो तो विंड में अगर आपको ओपन एक्सेस मिल गया है तो आप उसको रिजर्व करना चाहते हो विंड के लिए ही, आप सोलर में उसको डाइल्यूट नहीं करना चाहते, क्योंकि सोलर तो आपको पूरे महाराष्ट्र में कहीं भी लगा सकते हैं सर. विंड की साइट्स लिमिटेड ही होती हैं और वहीं पे इवैक्यूएशन भी कंस्ट्रेंट होता है हमेशा. तो उसमें अगर आपको मान लीजिए आपको इवैक्यूएशन कैपेसिटी मिल गई है बट आप किसी की छोटी है तो वो दोनों कॉम्बिनेशन कर सकते वो तो आप बड़ी में भी कर सकते हो. कॉम्बिनेशन इज अलाउड. सर इसमें जो आपने बोला सर CD डिमांड रहेगा 2900 और मैक्सिमम अपन अलाउडेबल 4028. हाँ जी, हाँ जी. तो उस पर ट्रांसफार्मर की कैपेसिटी कितना रहेगा? ट्रांसफॉर्मर आपके साइड का तो 2.9 ही रहेगा सर, जो भी आपने लगाया. वो तो जनरेशन एंड का 4 के हिसाब से लगेगा सर. नहीं 4 के हिसाब से लगेगा, जैसे 2900 मेरा मैक्सिमम कैपेसिटी CD का उसमें है. आपको कोई चेंज करने की जरूरत नहीं. मुझे ट्रांसफार्मर जो मेरा अंदर लगा हुआ है 3500 का लगा हुआ है मेरा और एक वो नहीं चेंज होगा सर, वो वही रहेगा. अब तो रोज नहीं ड्रॉप करेंगे, करोगे उससे ज्यादा उतना ही नहीं ना. हाँ मैक्सिमम आपके उतना ही घर में करता नहीं लाने पावर. घर में पावर ड्रॉप तो आप जो ले रहे हैं जो वो दे रहे हैं. सर बोल रहे थे जो गोयनका साहब बोल रहे थे बिल्कुल वो वैलिड है कि वो आपका अलग है, कंजम्पशन का, जनरेशन का अलग है. तो जनरेशन में आपको 4200 के हिसाब से लगाना होगा, 4400 के हिसाब से. 40. हाँ. और कंजम्पशन में आपका 3500 3000 जो भी है दैट इज फाइन. जनरेशन पे लगा. ठीक. ये थोड़ी सी डिफिकल्ट स्लाइड है तो थोड़ा सा स्लो जाएगी. इसमें अगर हम ओल्ड विंड टरबाइन डालते हैं तो इसमें जो अपन ने पिछली स्लाइड में देखा था 3 टरबाइन डलेंगी 3.75 मेगावाट की. और तो टोटल जनरेशन करीब 20 लाख आता है इसमें पर टरबाइन. तो वो 60.88 हमारे पास कुछ 7-8 टरबाइन का डेटा है नंदुरबार का. उसके बेसिस पे जो एक अच्छी जनरेशन टरबाइन थी उस बेसिस पे लिया है. तो 20 लाख के आसपास का जनरेशन आता है, जो लॉसेस काट के 54 लाख आता है. सो मेन इशू इसमें ये आता है कि जो ग्रिड का रिप्लेसमेंट है वो आपका केवल 46% हो रहा है. और इट्स वेरी इंपॉर्टेंट स्पेशली फॉर कंज्यूमर्स इन नागपुर जिनको who get multiple subsidies.
Once you get into open access, What is grid replacement? सर मतलब कि जो आपका कंजम्पशन अगर 100 100 यूनिट का यूनिट का है consumption था। और अगर 40 यूनिट आप ओपन एक्सेस से मिल रही है आपको, तो ग्रिड रिप्लेसमेंट आपका 40% हुआ। इसमें महाराष्ट्र स्पेशली फॉर कंज्यूमर्स इन नागपुर आपको जो सब्सिडीज मिलती है, दो प्राइमरी सब्सिडी है, एक जीओएम की सब्सिडी है 50 पैसे वाली, और एक अगर आपको लोड फैक्टर इंसेंटिव मिलता है 80 पैसे, 1 रुपए, 1.25 रुपए, जो बल्क भी कंजम्पशन छोड़ दिया, बल्क कंजम्पशन इंसेंटिव भी है। वो आपको उसमें ही मिलेगा सर, जो आपको ग्रिड से पावर मिलेगी उसमें मिलेगा आपको, ओपन एक्सेस तो माइनस होगा ना बल्क कंजम्पशन में से, जो आपको ग्रिड से यूनिट मिलेगी उसमें मिलेगा। जो मिलेगा ना, तो वो तो रिड्यूस हो जाएगा ना। मतलब कि 1% का फर्क पड़ेगा, उससे ज्यादा फर्क। बट ये दोनों आपको एक ही है। ओपन एक्सेस पे ग्रिड की यूनिट्स पे भी नहीं मिलेंगे सर। हाँ हाँ सही बात। पॉइंट मैं ये बोल रहा हूँ कि सर जो आपको लोड फैक्टर इंसेंटिव है, क्योंकि आपका लोड फैक्टर कम हो गया ग्रिड का, तो वो आपका जीरो हो गया लोड फैक्टर इंसेंटिव। जाएगा मगर बल्क भी जाएगा, हाँ बल्क भी जाएगा। बल्क भी जाएगा। तो लोड फैक्टर इंसेंटिव और जो जीओएम की सब्सिडी है वो आपकी जीरो हो जाती है। तो इम्पैक्ट ये होता है कि अगर आप रिप्लेसमेंट मान लीजिए 10% कर रहे हैं, बट आपकी पावर की कॉस्ट केवल 1 ही रुपए है, बट क्योंकि रिप्लेसमेंट कम कर रहे हैं और आपकी जीओएम की सब्सिडी चली गई 50 पैसे की, जो 90% पे आपको मिल रही थी, तो उसका इम्पैक्ट इतना ज्यादा हो जाएगा कि आपका ओवरऑल जो गेन है वो नेगेटिव हो जाएगा। यू विल नॉट गेन, यू विल लूज एक्चुअली। अभी डीएम सब्सिडी बढ़ने वाली, वापस 1 रुपए 20 पैसे पे आएगी, जब आपको फिर से कैलकुलेट करना पड़ेगा, होने वाला है वो। ठीक है, तो देखना पड़ेगा गुजर जी। तो बहुत डायनामिक रहने वाली है शीट। तो एंड अगर ओनली सोलर करते हैं तो हमारा जो रिप्लेसमेंट है करीब 61% आता है। इसकी कॉस्ट ऑफ जनरेशन इज लोअर, 4.29% का डिलीवर्ड कॉस्ट ऑफ पावर है, बट ओवरऑल कॉस्ट जो है वो सेविंग्स जो है वो करीब 2.48 आ रही है ऑन ऑल द यूनिट्स दैट यू आर कंज्यूमिंग। एंड द अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट नीड्स टू बी लुक्ड एट कि जब मेरा टाइम ब्लॉक चेंज होगा तो उसमें इसमें देयर वुड बी लॉसेस। बेसिकली अगर आप देखेंगे यहाँ पे 0% लॉस है। I'm just go through. ये लैब्स यूनिट जो है सोलर के केस में 0% है इन द करंट टाइम ब्लॉक। आप सारी के सारे जो जनरेशन है यू आर एबल टू कंज्यूम ऑल ऑफ दैट जनरेशन इन योर प्लांट। बट जब नया टाइम ब्लॉक आएगा देन योर लैब्स यूनिट इज इंक्रीजिंग बिकॉज यू आर ओनली, जो भी आपका 9 से 16 में जनरेट हो रहा है वो आपको उसी पीरियड में कंज्यूम करना है। यू आर नॉट एबल टू टेक इट इन द न्यू टाइम ब्लॉक। सो अगर ओनली सोलर करते हैं तो जो मुर्तजा बोल रहे थे, यू हैव टू कंसिडर कि अगर टाइम ब्लॉक चेंज होते हैं तो व्हाट विल हैपन टू यू। थर्ड ऑप्शन था कि केवल मैं एक 3.15 मेगावाट की बिल्ड लगाता हूँ तो उसका जनरेशन इज अबाउट 1 करोड़ यूनिट, 90 lakhs इज द टोटल सप्लाई। मेरा एक तो ग्रिड रिप्लेसमेंट 69% हो रहा है और मेरा लैब्स यूनिट दोनों के केस में सिमिलर है 7% और 6.4%। डिलीवर्ड पावर कॉस्ट इसमें ज्यादा है एज कम्पेयर टू सोलर, बट ओवरऑल मेरी सेविंग्स जो है वो बढ़ रही हैं क्योंकि इसमें मेरा रिप्लेसमेंट ज्यादा हो रहा है। सो दैट इज व्हाई द ओवरऑल सेविंग्स आर इंक्रीजिंग। एंड जो ऑप्टिमम सॉल्यूशन है वो है कि आप या तो बेसिकली 3.15 विद 1.2 मेगावाट सोलर या 2.1 विद 2.7 मेगावाट सोलर लगाएंगे तो आपका जनरेशन जो है 109 या 120 आएगा। This is the total supplied unit. Your satisfaction, so you can reach a satisfaction of about 80%. There would be some lapsation, 2.5% के आसपास इधर है। So ये थोड़ा सा वो है that needs to be considered। 2.5 है, इधर 7.7 है और आपका जो savings है इसमें maximize हो रही है 3.18 हो रही है। This is on all units. The savings are on all the units that you can. दिस इज दी मोस्ट इंपॉर्टेंट शीट पुनीत जी, और जैसा आपने कहा ये बहुत डायनामिक शीट रहेगी और ये सबको अपना इंडिविजुअल आपके साथ बैठ के वर्किंग करना पड़ेगा बिकॉज अदरवाइज इट विल बिकम टू कॉम्प्लिकेटेड फॉर इफ एवरीबॉडी स्टार्ट्स पुटिंग देयर नंबर्स। हाँ एक बार ग्रिड रिप्लेस क्या होता है? ग्रिड रिप्लेस का मतलब है कि अगर मान लीजिए आप 100 यूनिट कंज्यूम कर रहे हैं और अगर आपको ओपन एक्सेस सोलर से 40 यूनिट आ रही है तो आपने 40% रिप्लेसमेंट है। अच्छा, ओपन एक्सेस यूनिट्स डिवाइड बाय ग्रिड यूनिट्स। तो बट व्हाई इज इट वेरिंग फ्रॉम डिफरेंट कॉम्बिनेशंस? सो उसमें सोलर में आपका टोटल यूनिट्स केवल 74 lakhs आ रही है बिकॉज आपका रेस्ट्रिक्टेड है ना ओपन एक्सेस कैपेसिटी। ओके, आपके कॉन्ट्रैक्ट अमाउंट का क्या परसेंटेज आप यूज कर पा रहे हो ओपन हाँ एक्सेस? कॉन्ट्रैक्ट मतलब रिजल्टेंट पावर फ्लो वाला जो फंड है ओपन एक्सेस 5.6 था आपका, तो उसकी वजह से। एंड देन सेकंड इज दिस फैक्टर नीड्स टू बी कंसीडर्ड। मतलब वो टीओडी कैसे चेंज होगा फाइनली क्या होगा दैट तो वी कैन नॉट प्रेडिक्ट, बट जो अभी जो फॉर्मूला प्रपोज्ड है उसके हिसाब से ये नंबर काफी बढ़ जाता है। तो परसेंटेज ग्रिड रिप्लेस वर्ड से ज्यादा अच्छा वर्ड है परसेंटेज यूनिट्स कंज्यूम्ड अंडर ओपन एक्सेस। ये वर्ड पढ़ो तो यू विल करेक्ट, दैट विल बी बेटर वर्ड फॉर यू टू अंडरस्टैंड।
So basically इसमें वो जो previous option 4 दिखाया था, which is 2.1 megawatt की wind turbine और 2.7 megawatt peak का solar, उसमें annual basis पे how's your cost of, how does your cost of power look is what has been shown here. So जो ये जो पहली दो column है, this is the cost of power that you are incurring currently if you are not taking any power from wind or solar. And this calculation is basically once you start off taking power from that combination of 2.1 megawatt wind and 2.7 megawatt peak solar. So इसमें ये जो tariff है 4.46, this tariff has been worked out on the basis of, this includes your basically loan repayment, loan interest. This includes all your operating costs, O&M costs. This includes your transmission charges, billing charges, banking charges. So जो भी cost है आपकी lifetime के लिए, all those costs has been amalgamated and this is नहीं, आपने वो जो चार्जेस रहते हैं ट्रांसमिशन और सब पकड़ लिया 4.46 में. and this is the lifetime number. So उसका एक levelized tariff जो एक formula होता है उससे calculate किया है. So that has been, all that number has been included in this. This also includes assumes कि you are able to take GST credit and accelerated depreciation का tax benefit भी इसमें assume किया हुआ है. So this is the so this is the number that you are getting for open access power. Open access power in this case is about 70%. Grid power is about 30%. And basically grid power के charges आपके वही हैं. ED को मैंने zero कर दिया है हमने because ED आपको already exemption हो गया है. और GOD गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र की जो सब्सिडी है, सब्सिडी ये वाला नंबर है, सब्सिडी ये आपका 50 पैसे यहाँ पे लिया हुआ है, यहाँ पे जीरो कर दिया हमने. तो सब्सिडी नहीं मिलेगी एज ऑफ नाउ. हाँ, सब्सिडी नहीं मिलेगी. As soon as you get into open access, you will not get subsidy. Because the regulation says that. का लिमिट है ना, हाँ, 50 लाख का लिमिट है. नहीं, that issue is not there. The issue there is VF सब्सिडी में ओपन एक्सेस से मिल सकता है, बट आपको को परमिशन लानी पड़ती है जहाँ तक मेरा ख्याल है. नहीं, उसमें क्लियर कट है कि आप अगर दूसरे सोर्स से आप लोगे तो आपको नहीं देंगे. वो उसके रेगुलेशन में है सर, उसका जो पॉलिसी डॉक्यूमेंट है, वो ऑर्डर है, उसमें लिखा हुआ है कि वो खाली MNCDC का ये यूनिट यूज कर रहे हैं और नहीं गोइंग करिए, ये तो बोल रहे हैं मिलेगा ही नहीं. सर बोल रहे हैं वो जो अपन ऑपरेट नहीं सर, MNCDC नहीं, अरे ईबी रेसिडेंट वो बोल दिया, रेसिडुअल पे भी तो नहीं दिया ना उन्होंने. आप जो बात मित्तल जी वो देखो, रेसिडुअल पे भी उन्होंने जीरो दिया है. रेसिडुअल जो यूनिट्स है इस पे भी जीरो दिया है, वो नहीं मिलेगा बोल रहे हैं. और लोड इंसेंटिव भी नहीं मिलेगा. लोड इंसेंटिव तो ले ही लोड इंसेंटिव तो भूल जाइए आप, वो तो है ही नहीं. पर आपका बोलना है जो ईबी रेसिडुअल है उससे भी नहीं मिलेगा. That is why it is very important कि अगर ओपन एक्सेस पे जा रहे हैं तो होल हार्टेडली जाओ उस चीज के लिए. क्लियर, तो थोड़ा सा करने से नुकसान होगा, फायदा नहीं होगा. ठीक है. ये कहाँ पर लिखा हुआ है कि आपका सब्सिडी जीरो हो जाएगी? सर इसका जो ऑर्डर है ना GOM सब्सिडी का, उसी ऑर्डर में लिखा हुआ है सर. इसका ऑर्डर है गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र. गोयंका जी अपने को पढ़ना पड़ेगा, अपन बाद में देख लेते पॉलिसी में. मेरे को भी याद नहीं है ये, नहीं है भाई. मेरे ख्याल से नहीं है, बट वी हैव टू गो बैक. बट एनीवे लेट्स नॉट आर्ग्यू, क्योंकि बहुत सारे स्लाइड्स आपके बचे और क्वेश्चंस अभी बहुत आने हैं. 100% नहीं मिलता हूँ. चलो देखते हैं ना, आगे बढ़े. So टोटल पावर कॉस्ट 9.90 हो गया, ये 4.46 है. ये पावर कॉस्ट आपका बढ़ गया क्योंकि आपको शेयर की सब्सिडी नहीं मिल रही है. और कॉन्ट्रैक्ट डिमांड भी अभी हमने सारा इधर ही नोट कर दिया है, इसमें नहीं नोट किया. तो इसमें वो जो कॉन्ट्रैक्ट डिमांड का बेनिफिट सर को मिल रहा है वो हमने अभी नहीं कंसिडर किया है. कॉन्ट्रैक्ट डिमांड का नहीं, वो आप पकड़े भी मत. तो वो हमने नहीं पकड़ा है. सेम चार्जेस रखे हैं कॉन्ट्रैक्ट डिमांड के जो यहाँ पर थे. तो ओवरऑल सेविंग्स ऑन ओपन एक्सेस यूनिट्स आपकी करीब 4 रुपए के आसपास आ रही है. टोटल पावर कॉस्ट 6.7 है. 4 रुपए 9 रुपए 90 पैसे आ रही थी, 6 रुपए 70 पैसे आ रही है. 4 रुपए कैसे बना? सर ये तो टोटल यूनिट्स पे है. अच्छा, वो वाला जो है ओपन एक्सेस यूनिट्स पे. अच्छा, वो ओपन एक्सेस पे. ओके, ठीक है. आप जो बोले नहीं मिलेगा वो सब्सिडी के डॉक्यूमेंट में गवर्नमेंट के. हाँ, तो पॉलिसी डॉक्यूमेंट बोल रहे हैं गोयंका जी, देखते हैं अपन उसको बाद में. सब्सिडी के डॉक्यूमेंट में नहीं है. नहीं, मैं कोई बोला बात नहीं, वो अलग मैटर विशाल पे. आपको नहीं मिल रहा है, डिफरेंट इशू. पॉलिसी में लिख के नहीं है, मैं और वो गोयंका जी क्लियर है. चलो आगे. दिस इज द सेकंड सिनेरियो वेयर कराएंगे. देखिए लॉजिकली तो मिलना चाहिए जो वो बोल रहे हैं, क्योंकि वो तो गवर्नमेंट की सब्सिडी है, वो MSCDC की सब्सिडी नहीं है. तो गवर्नमेंट कैन नॉट डिफरेंशिएट इन प्रोवाइडिंग, बट ठीक है. So this is the second scenario, which is a high load factor scenario. This has been taken from a steel consumer. उसका एक्चुअल बिल से लिया है सर मेरे. तो उसमें उसको 80 पैसे का लोड फैक्टर इंसेंटिव मिल रहा है और सब्सिडी तो 50 पैसे की है. तो उसकी ओवरऑल कॉस्ट जो है 8.16 है.
उसका डिमांड चार्ज भी कम है ऑन ए पर यूनिट बेसिस, बिकॉज उसका जो यूटिलाइजेशन पर मेगावाट ऑफ डिमांड जो है वो काफी अच्छा है। इस केस में उसका कॉन्ट्रैक्ट डिमांड 4000 है, CTR 100 है, तो उसको अलाउेबल ओपन एक्सेस कैपेसिटी 8056। और इसमें अगेन सेम कॉम्बिनेशन हमने किया है कि सोलर 8.1, विंड ओल्ड टरबाइन 8.1 और विंड न्यू टरबाइन 2.10 और 3.15। सो इसमें बेसिकली सोलर की कैपेसिटी जो हम कर सकते हैं वो 11.9 मेगावाट डीसी हो गया। विंड इज अबाउट, अगर पुरानी टरबाइन लगा रहे हैं तो 6 टरबाइन तक जा सकते हैं हम। अगर 2.1 की टरबाइन लगा रहे हैं तो 3 टरबाइन लगा सकते हैं, और अगर 3.15 की लगा रहे हैं तो 2 टरबाइन लगा सकते हैं। 2.15 टरबाइन के साथ साथ हम 2.15 मेगावाट पीक का सोलर लगा सकते हैं। और 3.15 में भी वो नंबर सेम है, 2 into 3.15 एंड 2.1 into 3 आर सेम नंबर बेसिकली। सो उसमें भी हम 2.5 मेगावाट पीक तक का सोलर लगा सकते हैं। सो सिमिलर एनालिसिस हियर। ओल्ड विंड टरबाइन में हमारा जो रिप्लेसमेंट है, ग्रिड रिप्लेसमेंट है या ओपन एक्सेस से जो आपको पावर आ रही है, दैट इज वेरी लो। ओपन एक्सेस से यू आर ओनली गेटिंग अबाउट 36% पावर इन विद ओल्ड विंड टरबाइन। विद सोलर यू आर गेटिंग अबाउट 50%। इसमें परसेंटेजेस कम है क्योंकि इसमें कंजम्पशन उसका ज्यादा है फॉर द सेम कॉन्ट्रैक्ट डिमांड, बिकॉज इट्स ए स्टील कंज्यूमर। एंड ऑप्टिमाइज करके वी कैन रीच अप टू 70% रिप्लेसमेंट ऑफ हिज grid consumption. And basically सेम सिनेरियो सोलर में, अगर जब नया टाइम ब्लॉक आएगा तो लॉसेस बढ़ जाएंगे। इनमें सिमिलर ही है, 5.1 का 4.6 और 3 का 3%। सोलर का हमारा डिलीवर पावर कॉस्ट कम है, विंड का हमारा ज्यादा है, और जब विंड प्लस सोलर कर रहे हैं तो कहीं बीच में है। ठीक है, बट ओवरऑल सेविंग्स हमारी मैक्सिमम इधर आ रही है। इसमें सेविंग्स भी हमारी जो है कम होगी। सो सिमिलर टेबल यहाँ पे जो सेविंग्स ऑन ओपन एक्सेस यूनिट आ रही है वो करीब 2.95 आ रही है। इसमें हमने वी हैव नॉट कंसीडर्ड दिस 0.80, ये 0 रखा है, और 0.5 जो सब्सिडी मिल रही है वो दोनों 0 रखा है। सो लोड फैक्टर इंसेंटिव और सब्सिडी दोनों वंस यू आर गेटिंग इनटू ओपन एक्सेस वी हैव केप्ट इट एट 0। ये Plasto sir की permission से we are putting this slide. Basically this is the actual adjustment for June month for Plasto. So इसमें noticeable चीज ये है कि they have used contract demand of 3415 in this month, and उसके हिसाब से they should have been charged this value, but they are charged only this value, basically this value. So they are saving this amount in contract demand charges in the month of June. डिमांड रिकॉर्ड कितना होगा? 3415 सर, ये नंबर लिखो 3415। हाँ, बट उनको चार्ज जो है 2625 का कर रहे हैं। कॉन्ट्रैक्ट डिमांड कितना है? 3500 है सर। हाँ, 35। और बाकी चीजें मोटा मोटा सिमिलर हैं। सो एक मिनट, एक चीज देखना था जो आपने बताया, बिलिंग 60 पैसा लगाया आपने, इसमें कितना लगा है? इसमें भी 60 लग रहा है इसमें। और ट्रांसमिशन जो आपने लगाया वो नीचे आपने 72 पैसा लगाया है। आपने ऐसा बताया कि 36 का डबल किया है अभी उन्होंने, 48 का उन्होंने 1.5 टाइम्स किया। थर्ड वन था, थर्ड वन था तो 1.5 टाइम्स बराबर। ये लिखा हुआ है सर, इसलिए एक्सप्लेनेशन लिखा हुआ है कि ट्रांसमिशन चार्ज जो है हमने 96 पैसे ही पकड़ा है, 96 से 98 पैसा। इनके केस में कम लग रहा है बिकॉज वो अभी वो रेशियो में जा रहा है। सो वी हैव एक्सप्लेन्ड दिस। लोअर डिमांड चार्ज आल्सो वी हैव नॉट कंसीडर्ड, ऑल्दो हमको लगा है। इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी वी हैव टेकन इट आउट, और ये भी वी हैव क्लियरली एक्सप्लेन्ड दैट वंस यू गेट इनटू ओपन एक्सेस आपको लोड फैक्टर इंसेंटिव और जीवन सब्सिडी नहीं मिलेगा। इंक्रीमेंटल कंजम्पशन रिबेट इज एनीवे फॉर शॉर्ट पीरियड, सो दैट यू कैन एंड इनका जो ग्रिड कंजम्पशन उस पे इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी जोड़ा है क्या आपने? नहीं जोड़ा है सर, दोनों में नहीं जोड़ा है। इनका ना ग्रेड कंजम्पशन पे ना ऊपर है, दोनों में नहीं जोड़ा। जीरो हो गया। हाँ सर, जीरो ही होगा। तो ग्रिड कॉस्ट सेविंग तो ग्रेड कॉस्ट जो है 10.29 है इनकी, और जब ओपन एक्सेस से ले रहे हैं तो इनकी एवरेज कॉस्ट इस जून मंथ की 5.16 पड़ रही है। बट इसमें
we have not considered the जो डिफरेंस जो आ रहा है नहीं, we have not considered कि जो आपने लोन लिया है, जो आपने फंडिंग करी है प्रोजेक्ट लगाने के लिए, जो ऑपरेटिंग कॉस्ट ऑफ टरबाइन है, वो सब हमने नहीं कंसिडर किया। इसमें ओपन एक्सेस का जो चार्जेस आप MSCDCL को पे कर रहे हैं, बस उतना ही कंसिडर किया है। सो नहीं पर वो कितना आता है फिर उसको 5.16 को? सर वो हमने पिछली स्लाइड में दिखाया ना सर, वही रहेगा मोटा मोटा। 3 रुपए हो जाता है, उसमें भी 3 रुपए हो जाता है अगर लोड फैक्टर का इंसेंटिव नहीं रहता। ये बेसिकली ये 4 रुपए के आसपास सेविंग आएगी सर, ये दिखाया हमने। ये 4 रुपए। नहीं, इससे कंपेयर करना पड़ेगा ना अपना जो ओरिजिनल पावर कॉस्ट 99 9.9 माइनस 6.7 इज अ रिजल्टेंट सेविंग, बट ये ओपन एक्सेस पे निकाल के दिखा रहे हैं, बट वो मीनिंगलेस है मेरे ख्याल से। बहुत 9.9 मतलब किस मतलब 9.9 to 6.7। That is on all the units, प्रशांत जी। Yeah, and- जो आपका सारा ग्रिड से पावर आ रही है, वो सारी ओवरऑल ही देखना पड़ेगा ना, एंटरप्रेन्योर को तो अपना ही ओवरऑल बिल देखना है। एब्सोल्युटली, तो इसलिए हमने आपको दोनों नंबर दिखाए। राइट। तो इसमें बेसिकली सो एक तो ये इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी इनका चला जाएगा इसमें। सेकेंड है कि लोड फैक्टर इंसेंटिव ये क्लेम नहीं कर रहे थे। जीओएम सब्सिडी इनको 0.5 मिला था, जो हमने assume किया कि वो नहीं मिलेगा, मतलब जो उनको नहीं मिला once they have gotten into open access। इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी तो पकड़ा आपने, 0 बताया था आपने। सर ये उस बिल में आ गया था ना गोयनका बिल जी, में आया है, इसके अभी वो अभी तक जो हमने regulation- एनालिसिस किया है सर, इससे पहले उसमें नहीं, ये कैलकुलेशन में से माइनस करना दोनों से माइनस होगा ना गोयनका जी, दोनों से माइनस होगा। मतलब वो जो हमने एक्चुअल जो सिनेरियो दिखाए उसमें नहीं इंक्लूड किया, इसमें इनका बिल में आया था इसलिए इसको लिया हुआ है सर। लेकिन इसमें भी एक है कि जिसको ऑलरेडी सब्सिडी मिल रही है, तो वो सब्सिडी में अपना ईडी माइनस होता है, तो वो यहाँ पे ऐड कर सकते हैं जो सब्सिडी क्लेम कर रहे हैं। कैपिटल सब्सिडी जो कैपिटल सब्सिडी जो है, राइट, गोयल जी, आपके पूरे इक्वेशन चेंज होंगे टैरिफ के बाद। एक्चुअली इसमें 2-3 चीजें हैं। एक कमीशन शायद ग्रिड सपोर्ट चार्जेस लगाएगा, ग्रिड सपोर्ट चार्जेस के बाद में चेंज होगा। दूसरा VM सब्सिडी चेंज हो गई, बढ़ने वाली, तो वो सब होने के बाद में टैरिफ आने के बाद में फिर वो गोयनका जी सभी को वैसे भी इंडिविजुअली बैठना ही है, हाँ, अपन एक बार ये देख लेते हैं, फिर उसके लिए इंडिविजुअली बैठना ही पड़ेगा। आप जो बोल रहे हो वो सही है। So ये this is just a comparison of group captive and captive model. So main difference is that group captive में आपको GST input credit नहीं मिलता है और accelerated depreciation tax benefit नहीं मिलता है। Plus आपका cost of funding ज्यादा होती है in a group captive model versus captive model. So इसका overall difference is about 35 to 40% in your cost. GST is 14% and accelerated depreciation tax benefit is about overall 25%. So finally, this is the last sheet from my side. So basically, what we are suggesting to you is that EV power cost in Maharashtra is one of the highest. In fact, what we have seen is right now it is the highest in the country for industrial and commercial consumers. So you have to find alternatives if you are competing with others. Second is that if you are going for open access, you have to follow an all or nothing scenario. कि अगर आप ओपन एक्सेस कर रहे हैं तो आप उसको टेस्ट नहीं कर सकते, आपको उस यूनिट के लिए जितना भी मैक्सिमम ओपन एक्सेस होता है वो लेना पड़ेगा, नहीं तो सब्सिडी का जो नेगेटिव इंपैक्ट है उसकी वजह से आपको बेनिफिट नहीं होगा। थर्ड है विंड सोलर कॉम्बिनेशन में इन ए लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव विंड मेक्स मोर सेंस एज लॉन्ग एज योर कंजम्पशन इज हायर ग्रेटर देन 75 lakhs. Rooftop anyway everyone knows that's the lowest cost power. So rooftop opportunity गवर्नमेंट ने इनफैक्ट काफी अच्छा ये पॉलिसी निकाला है. Lot of states are not allowing this simultaneous operation of rooftop and open access. So you should use it if any rooftop opportunity is available. Business model capex is more beneficial, especially in a scenario of Nagpur where you have lot of subsidies which are provided. OPEX or group captive model में it will be very difficult to make it viable or bring some savings in that model. And once you adopt it, it will give you long-term visibility on your cost of power, which remains a huge uncertainty in your minds when you're planning for any expansion or any 5-year plan or 3-year plan. So that's it from my side. That's it. एक मिनट पहले हमने सिंगल शिफ्ट ऑफ वर्किंग कंज्यूमर पर ये आपने पूरा फोकस किया बड़े छोटे। What about small consumers? So वो हम वर्किंग कर लेंगे उसमें मॉडल बना हुआ है. It's not difficult. Once we get the bill, we can do that. Single shift consumer who are operating day by day. उनको तो सर 16 ही जाएगा उनका तो फिर देखिए अगर छोटा कंज्यूमर है तो वैसे भी वो 16 ही जाएगा.
बड़े कंज्यूमर भी है कई स्टील प्लांट जो ओपन सीट में ऑपरेट कर डेटा है उनको तो विजिबल आएगा ही नहीं। सर वो मुश्किल है क्योंकि अगर डे टाइम में ऑपरेट करेंगे उनका कंजम्पशन वर्सेस कॉन्ट्रैक्ट डिमांड बहुत ज्यादा हो जाएगा, कम हो जाएगा। कंज्यूमर आप 80% बड़े टारगेट में तो इसका क्वांटम बहुत कम है। Right. Thank you, Puneet ji. Thank you for. I'll request you to come here. एक इसमें ये भी है कि इसका हमने पूरा जो कॉस्ट एनालिसिस किया है तो 8% ब्याज गिन के भी 5 साल में अपना इन्वेस्टमेंट का पूरा रिटर्न आ जाता है। क्या होता है नया टैरिफ आएगा तो 99% ग्रिड सपोर्ट चार्जेस लगाएगी तो कमीशन, उन्होंने पिछले टैरिफ में बोला था। क्या रहेगा वो ग्रिड सपोर्ट चार्जेस? सर उसका पब्लिक कंसल्टेशन होगा, दे विल पब्लिश अ रिसर्च। तो अगर पिछले टैरिफ में उन्होंने बोला था कि आरटीएम में ग्रिड सपोर्ट चार्जेस लगा सकते हैं। पुनीत जी आप बैठ के बोल सकते हैं, वहाँ पे माइक है ना। कितना परसेंट ये देखो कितने? एक फॉर सोलर दे हैव कमिटेड फॉर सोलर, आप जो कह रहे हैं शायद ओपन एक्सेस पे लगा दें, बट फॉर नेट मीटिंग सोलर दे हैव सेड कि हम उस पे नहीं लगाएंगे। के लिए नहीं, जो भी ग्रिड से कनेक्ट होगा हाँ वो सही है, ओपन एक्सेस पे लगा सकते हैं, ऊपर में लगाएंगे। करेक्ट लगा सकते हैं। आगे अपन नहीं बता सकते। दूसरा अगर पीएम सब्सिडी चेंज होते पुराने लेवल पे 20 पैसे पे आ गई तो आपका पूरा इक्वेशन चेंज हो जाएगा। डेफिनेटली, लेकिन अगले साल रेट भी तो बढ़ने क्यों नहीं दे? ग्रिड भी बढ़ेगा, बराबर है कि आपका ग्रिड का रेट भी बढ़ेगा। प्लस अगर सर कांग्रेस आ रही है तो 300 यूनिट फ्री में जानी है सर रेजिडेंशियल कंज्यूमर्स को, तो उसके लिए भी तो किसी को तो देना पड़ेगा। अभी ऑलरेडी अभी सोलर अभी जितने पंप्स है एग्रीकल्चर पंप को तो फ्री कर दिया इलेक्ट्रिसिटी। तो ऑलरेडी निकला था पॉलिसी पड़ेगा सर हमें, घर पे हम फायदा उठाएंगे अपने घरों जो पे, क्रॉस सब्सिडी उठा पाएंगे नहीं, बट इंडस्ट्रियल कंज्यूमर्स को तो देना ही पड़ेगा। भैया आपके पूरे 5 इयर्स में आई थिंक वो सिर्फ तब है जब आप लोड फैक्टर बेनिफिट नहीं ले, क्योंकि तब 3.25 रुपए का I think ये हमारे लिए है। अगर हमारा कोई केस है। लोड फैक्टर बेनिफिट ले रहा है तो उसके लिए ऑलमोस्ट 9 to 10 इयर्स का पेपर 6 to 7 होना चाहिए, वी कैन रन दैट कैलकुलेशन थ्रू। देखिए कैसा है कि ये आज का सिनेरियो है, इसके हिसाब से ये आज हमको नॉलेज है, तो हो सकता है हम साल 2 साल बाद जब एमएससीबी के रेट चेंज हो जाए, जैसे गोयनका जी बोल रहे हैं ग्रिड सपोर्ट चार्जेस लग जाएंगे, हो सकता है 300 यूनिट 200 यूनिट आपको लोगों को फ्री देने, तो उसका लोड भी अपने पे ही आने वाला है। तो वी डोंट नो, जैसे बैंगलोर में हुआ था, इनका बोलना है कि वहां पे 200 यूनिट फ्री किया तो 2 रुपए यूनिट इनका बढ़ गया, 8 रुपए का 10 रुपए हो गया। मैंने कहा फिर भी बहुत लकी हो आप, 10 ही रुपए दे रहे हैं, हम तो 20 रुपए दे रहे हैं महाराष्ट्र में। रेसिडेंशियल अगर 1000 यूनिट के ऊपर है तो हम लोग तो 20 रुपए दे रहे हैं, फिर भी इनको 10 ही रुपए लगा है। तो ये सारे इक्वेशंस चेंज होते रहेंगे। जैसे इन्होंने स्टील वाला बताया, तो वो स्टील और आपका सेम है जो टेक्सटाइल अलग है, टेक्सटाइल में तो और 2 रुपए है। टेक्सटाइल नेचर के टेक्सटाइल सब्सिडी नहीं है। हाँ वो 2 रुपए उनको और फायदा है, तो उनको कोई फायदा नहीं। टेक्सटाइल सब्सिडी मिलती रहेगी कि वो भी चलेगी। मैंने उसका रेगुलेशन पढ़ा था, I done that analysis for Arvind Mill। So उस रेगुलेशन को पढ़ के तो था कि जो ग्रिड से पावर आ रही है उसका टेक्सटाइल सब्सिडी मिलेगी। आपने जो कैलकुलेशंस किए हैं खाली एमएससीबी के यूनिट्स के ऊपर इतना रोड फैक्टर का 60% देखा उससे इसलिए यूनिट है रोलिंग ये सही में ये लॉक यार 30-35% पे कैसे चलेंगे, उनका कॉन्ट्रैक्ट डिमांड तो बहुत बढ़ जाएगा, तो सरवाइव नहीं कर पाएंगे सर। के लिए तो रहेगा ही नहीं। तो अगर वो डे शिफ्ट में कर रहे हैं तो वो अगर वो डे शिफ्ट में ऑपरेट कर रहे हैं तो भी चलाते हैं फिर भी 40% so we can look at their लोड इतना वेरिएबल रहता है। we can look at their bill and we can run that analysis, probably उनका solar will be more beneficial for them अगर वो डे में ऑपरेट कर रहे हैं, बट हम उसको रन करके we can look at it, उनका रिप्लेसमेंट पड़ जाएगा क्योंकि उनका अगर लोड फैक्टर ही कम है तो रिप्लेसमेंट पड़ जाएगा कम पड़ेगा। एमएससीडीसीएल से कोई आए हैं क्या? हमने रिक्वेस्ट की थी एमएससीडीसीएल का कोई स्टाफ। तो समझेगा भी नहीं ना, आए तो क्या करेंगे। वो क्यों आएंगे? चल रहा बात कर रहे हो और वो ज्यादा तो आएगी। वैसे भी कोई क्लैरिटी होगी तो अपन ले सकते हैं। नहीं यहाँ पर कोई भी नहीं तो इतनी क्लैरिटी देगा, एमएससीबीसी में कोई नहीं है ना। नहीं तो उनको समझ में तो आएगा, कम से कम अपन जब जाएंगे अपने पॉइंट लेके तब तो उनको तो ऐसा बता देना था, तो पहले बुला लेते वो। मैंने तो बोला था सबको बुला सकते थे। लगता है कि यहाँ लोगों को समझता है क्या
लोकल जो एमएससीबी वाले नहीं समझता ना, वो तो मुझे मालूम है, किसी को नहीं मालूम। बाकी फायदा क्या था? ये तो समझने के लिए तो बुला रहे थे। नहीं वो समझा भी नहीं रहता ना उनको, और उनके हाथ में कुछ भी नहीं है ना, वो क्या करेंगे, वो तो ऊपर से ऑर्डर अभी जैसे गोयनका जी बोल रहे हैं कि ये सब्सिडी मिलनी नहीं, वो चाहिए। रूल के अंदर में मैं बता रहा, मैंने पढ़ा हुआ है, उसके अंदर लिखा था अगर इफ यू आर बाइंग फ्रॉम अदर सोर्स ऑफ पावर, तो आप प्योरली ले रहे हो तो सरकार उसके पैसे देगी, लेकिन आप दूसरे जगह से पावर ले रहे हैं, आप दो कलेक्ट कर रहे हैं, उसके कारण ये सर्टिफिकेट का कानून लागू किया था कि आप लोग तब वो सर्टिफिकेट लेने बोल रहे थे, अब वो सर्टिफिकेट हटा दिया कि जरूरी नहीं है अभी तुमको देंगे, रूफटॉप में है तो तुमको देंगे सही है। लेकिन आप दूसरे सोर्स ऑफ पावर से अगर आप ले रहे हैं और आप 100% एमएससी से दे रहे हैं, तो ये आपको हम सब्सिडी नहीं देंगे, ये उस रूल में वही प्रशांत का का जो आया था ये सब के उसी ऑर्डर कर मिलेगी एमएससी डीसीएल के कंजम्पशन पे मिलेगी। हाँ वो तो नेचुरली, हाँ तो कैसे मिलेगी वही तो हमको। तो वही पॉलिसी पर हम देख लेते हैं, और जैसा गिरधारी भैया बता रहे हैं कि शायद उन्होंने चेंज किया है, तो एक बार देख लेते हैं। यानी जब से सर्टिफिकेट वाला सीन हटा दिया, वो हटा दिया उसके बाद में वो क्या हुआ, तो वो गोयनका जी वही बता। मैं पॉलिसी में लिख के, उसकी पॉलिसी लास्ट पॉलिसी वाज ऑन 23 जून 2022, तो वो डॉक्यूमेंट देखना है, 2 मिनट में मालूम पड़ जाएगा कि क्या है। यदि मनोज आपको याद है तो बताओ। उसमें ऐसा कोई कंडीशन नहीं है कि एमएससीडीसीएल यूनिट्स पे मिलेगा ही मिलेगा। मिलेगा ना, देख मैं वही बोल रहा हूँ, पॉलिसी मेरा भी पड़ा हुआ है, हमारा 2 बार डिस्कशन भी हुआ है। नहीं तो अभी हमारे बिल में नहीं है। नहीं आने से विशाल भाई, वो आपने कुछ लेकर के लेना है, आपका बिल में फायदा कराना है कि वो वीएम सब्सिडी मिलेगा। वो उनके पास तरीके हैं अलग अलग तरीके से, हमको भी कई बार अलग अलग रीजन से बाहर कर दिया है। अगर नहीं तो लिखा है तो फिर नहीं लिखा है ना, पॉइंट है कि उसमें लिखा हुआ नहीं है। मैं एक बार हम भी देख लेते हैं, आप भी देख लीजिए, मेरे को हमारा जो याद है जो ये सॉफ्टवेयर वाले गलती करते ओपन एक्सेस कंज्यूमर लिख दिया कि वीएम सब्सिडी 0 है। बस वो उनके पास अलग कई प्रकार के तरीके हैं। उनको बिलिंग सिस्टम में, और यहाँ किसी को नहीं समझेंगे, हमको मुंबई से लाना पड़ेगा। तो मुंबई का है, बट कि अभी कहीं पे भी नहीं दे रहे हैं, मतलब ऐसा कराड़ जी आपका क्या बोलना है कि अपन उसमें ये कर सकते हैं जैसे बॉम्बे से करवाना पड़ेगा। चलिए आपके पॉलिसी डॉक्यूमेंट तो लेके आओ ना, 2 मिनट इतना ओपन 2022 यूनिट आ रहे हैं जनरेट होके, उसमें सब्सिडी नहीं मिलेगी। लेकिन suppose कि आपका 20 लाख का टारगेट है महीने का और आपको 12 लाख जनरेट हो रहे हैं, उसमें नहीं मिलेगा, लेकिन 8 लाख में मिलना चाहिए। ये तो अभी नहीं मिल रहा तो उसके लिए क्या मिलना करना चाहिए साहब, नहीं मिल रहा है ऐसा कैसा नहीं, वो रूल के अंदर में है, मैं बता रहा हूँ आपको, मिलना ही कंफ्यूजन है चाहिए, वो। मिलेगा ही। तीन महीने से तो नहीं मिल रहा, आप देखो ना बिल्कुल। नहीं, ये ज्यादा जोर से रिप्रेजेंटेशन करने वाला मैटर है गोयनका जी, केवल मुंबई भेजने से नहीं होता, फ्लाइट टिकट के अलावा कुछ नहीं जाने वाला उसमें। नहीं, वहाँ जाके उसके लिए- बैठना पड़ेगा, हाँ, वहाँ और जाके गिरधारी बिहार का और हमको के बाद जाके सबका बैठना कुछ पड़ेगा, लगेगा। बैठ के ये वाला विषय पे बात मैंने गडकरी जी ये नॉर्मल विषय नहीं है, बहुत बड़ा विषय है। को बोला था, उनके पास जितने भी बैठे थे वो बोले अगर ये मिलेगा तो वो नहीं मिलेगा, उनका माइंड में तो वही है। यहाँ पे भी जब MSCDCL के ऑफिस में मीटिंग हुई थी, तब भी मैंने फैक्टर नहीं देखो, उनको देना नहीं देना उनके हाथ में नहीं है, MERC ने करके डिफाइन किया होगा कि 2 सोर्स से, क्योंकि ये है सरकार के क्लियर करना पड़ेगा। गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र सब्सिडी, हाँ, उसी का ऑपरेटिव है। उनको जाके इंडिविजुअली मिलना पड़ेगा, जो मिलेंगे उनका हो जाएगा। एक जगह लिखा हुआ है हो सकता है बेस्ट नहीं तो ये हम अभी है ना, अभी लघु उद्योग भारती का विश्वास पाठक है, उस दिन वाला ले लो विषय, 27 तारीख को है यहाँ पर। बोल रहा था नहीं वो आप आ सकते हैं फ्री में, ऐसा कुछ नहीं हो, चार्ज जानबूझ कर ना, आप क्या एनर्जी इतने यहाँ से फ्लाइट की टिकट देंगे हम लोग, वहाँ 500-700 रुपए बोलना वो मिल गया, बोलना अपनी बात नहीं कर रहा हाँ। हूँ, जनरल पब्लिक की बात। जनरल पब्लिक को आने देंगे ऐसा नहीं है, वो उन्होंने जानबूझ के रखा है ताकि Right. इंटरेस्टेड लोग ही आवे, लेकिन आप फ्री में भी आए तो अंदर आने देंगे, ऐसा कोई मेरी बात होगी। So I think it was a fantastic session, lot of very well made presentation, जहाँ पर clearly उन्होंने कहा है point number, इसमें लिखा है जर एखादा औद्योगिक ग्राहक मुक्त प्रवेशामधून पूर्णपणे महावितरण कंपनीकडे आल्यास व त्याने वीज करार मागणी जो भी है वाढविल्यास, अशा ग्राहकाला चालू वर्षाच्या मासिक वाढीव वीज वापराची तुलना उपरोक्त मुद्द्याने, इसमें नहीं, दिस इज सेपरेट इशू, ये तो कंपैरिजन है, This is coming back. दिस इज कमिंग बैक वाला स्कीम है, वो उस पे नहीं है, इसलिए मैं कह रहा हूँ। हमने पढ़ा, मैं आपको काफी श्योर हूँ, मैंने गोयनका जी और हमने कई बार इस पर डिस्कशन किया है, तो इसलिए हम काफी कॉन्फिडेंट है कि वो नहीं है, इसलिए मैं कह रहा था। तो बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन इनका हुआ है, डेटा उन्होंने जो दिया वो बहुत अच्छा है। सबसे अच्छी बात उन्होंने ये प्रेजेंटेशन के माध्यम से सबको अवगत कराया है कि हमें किस लेवल तक पावर टैरिफ नीचे आ सकता है। और जैसा कि मैं कह रहा हूँ, ये उन्होंने जो भी एग्जांपल दिया ये ओनली ओपन एक्सेस का है। इफ यू क्लब इट विद नेट मीटरिंग,
the advantage will further go up. Yes. अभी तो हमने उस पर डिस्कशन ही नहीं किया. Yes. That is another avenue where your power cost can bring down your average income bill 6.7 या 6.8 दिखा रहे थे. I can assure you with net metering and open access, it can come down to 5.5. ये जो मैंने बोला फिर से छोटे कंज्यूमर सिंगल शिफ्ट कंज्यूमर इनको टारगेट करके एक प्रेजेंटेशन बनाना वो अलग एक बात है, वो तो करना ही पड़ेगा. अभी खाली बड़े कंज्यूमर को टारगेट कर रहे हैं बल्कि ऊपर से ही नीचे आना पड़ेगा ना कहीं जी. पहले बड़े पहले फिर छोटे, तो पहले बड़े वालों को देख रहे हैं अपन जिसके लिए है. गोयनका जी कैसा है कि ये बैंगलोर बेस्ड कंपनी है और इनको तो जो इनके अभी जो प्लांट सेल डाल रहे हैं विंड के लिए ज्यादा डाल रहे हैं, तो इनके पास जो बड़े बड़े कंज्यूमर्स है, अब अपन लोग तो छोटे हैं, इनके पास 8-10 विंड मिल लेने वाले कस्टमर भी है ऐसे. तो मगर जो क्वांटम आप देखेंगे ना तो जिस लेवल के कंज्यूमर्स का इनका टारगेट है वो लेकिन बहुत कम नहीं, है। वो अपन को फिर वो सुशील गोयनका और लोकल यहाँ ले लेंगे कोई लोकल के जो लोग हैं जो सोलर में ही काम कर रहे हैं, they can help us in I that. think that is separate issue. पहले हम बड़े को देख लेते हैं जिनका 3 शिफ्ट एक्सेस है, जिनके पास मेगावाट एटलीस्ट 1 मेगावाट के ऊपर है, वो 100 किलो इवन 1 मेगावाट के बिलो भी रहे तो आपको चैलेंजेस आ रहे हैं. वो सबको एक बार बाद में देखते हैं, बट एटलीस्ट जो आज अवेलेबल है वो समझ लिए हैं. आई थिंक वैसे तो हमने क्वेश्चंस ड्यूरिंग द सेशन ही रखे हैं, बट आई एम श्योर क्योंकि मैटर इतना कॉम्प्लिकेटेड है तो देयर विल बी मोर क्वेश्चंस. तो आई वुड लाइक टू ओपन द हाउस टू क्वेश्चंस एंड टारगेटेड क्वेश्चन कीजिए. प्लीज डू नॉट मेक अ वेरी लेंथी क्वेश्चन. टारगेटेड क्वेश्चन कीजिए, डू नॉट रिपीट योर क्वेश्चंस. बोलिए. Can there be a group net metering solution for, two units which are under two different names and having a combination of solar and wind together? Very specific question. ग्रुप नेट मीटिंग यहाँ ओपन एक्सेस की बात करते हैं. ग्रुप ओपन एक्सेस. हाँ, ग्रुप ओपन एक्सेस. यस, ग्रुप ओपन एक्सेस. Group open access. नेट मीटिंग नहीं, ग्रुप ओपन एक्सेस. So one of the plant will have a net metering 1 megawatt solar. Along with that, is it possible to have सो उसमें बेसिकली आपको इंश्योर करना पड़ेगा कि they are under part of the capital structure. So you're saying their shareholding is different, but if they are linked with each other either as a subsidiary or as a parent company, holding company, then they can those two units can offtake power from a wind and solar. आपको जहाँ पे आपका power generation हो रहा है, there you have to specify that what proportion of wind will go into unit 1, what proportion of wind will go into unit 2. And similarly, what proportion of solar in unit 1 and unit 2. But उन दोनों के बीच की relationship आपको establish करनी पड़ेगी as either parent or holding company or subsidiary, which has to be established as per the company law. So not as per group capital rules. As per company law में जो options हैं कि अगर directors common है, अगर holding अगर control है board पे, अगर 51% की holding है, so any of these criteria are met. So you can establish that subsidiary or holding company relationship, and then you can flow power from one company to another as a captive power. नहीं, एक अलग कंपनी बना के भी तो कर सकते हैं. अलग कंपनी बना के कर सकते हैं सर, उसमें लेकिन जीएसटी का बेनिफिट. हाँ सर, जीएसटी का बेनिफिट नहीं मिलेगा. ग्रुप कंपनी में ये है कि आप एक सेपरेट आइडेंटिटी बना रहे हैं, तो उसमें आपको जीएसटी कौन लेगा क्रेडिट? कोई भी नहीं ले सकता, क्योंकि वो एक अलग आइडेंटिटी है. जैसे और हम कई बार क्रॉस सब्सिडी वाला चक्कर आ जाएगा. नहीं, उसका यदि आपका 26% कैप्टिव रहेगा तो नहीं आएगा. 26 कैप्टिव पे रहेगा तो कैप्टिव मॉडल पे जाना पड़ेगा. विदाउट कैप्टिव तो वायबल ही नहीं है. तो आजकल प्रशांत जी जो नया कैप्टन में अमेंडमेंट आया था लास्ट ईयर, उसमें अगर you don't have to take 26% equity stake. If you are able to establish relationship as a subsidiary or as a holding company, तो it automatically flows कि वो captive power. Right. Okay. with Next. submetering also it's possible? Submetting as in यानी एक इंडस्ट्रियल कंजम्पशन के बीच में अगर दो सबमीटर रेसिडेंशियल कमर्शियल then also this is applicable because net metering is not there. नहीं, बट ऐसा कैसे होगा? आप पे तो अलग अलग मीटर लगे होंगे ना, इंडस्ट्रियल का अलग होगा, कमर्शियल का अलग मीटर होगा. एक मीटर में कैसे सब मीटर होगा? Industrial meter and there are two submeters, residential and commercial submeters. एक मिनट मैं समझाता हूँ आपको इसका क्वेश्चन क्या है. एक यूनिट है जिसका 100 यूनिट कंजम्पशन है महीने का. 90 यूनिट्स तो इंडस्ट्रियल कनेक्शन है, लेकिन जो 10 यूनिट्स है उसमें से 4 यूनिट रेसिडेंशियल जा रहे हैं, 6 यूनिट कमर्शियल के कनेक्शन है. विद इन द कंपनी होता है ना रेसिडेंशियल और कमर्शियल. तो ये जो ओपन एक्सेस का जो फैसिलिटी है ये पूछ रहा है, जो मैं समझ रहा हूँ कि क्या इसके साथ भी ऑफसेट होगा क्या? रेसिडेंशियल एंड कमर्शियल के साथ भी ऑफसेट होगा क्या? राइट. उसमें भी जाना था whether it is applicable. उसमें जो रेजिडेंशियल और कमर्शियल का जो आपका मीटर होगा, that is also MSCDCL approved meter. Yes. MSCDCL से बिल हो रहा है.
राइट, तो आपको एटलीस्ट इंडस्ट्रियल वाला तो मिल ही जाएगा, इंडस्ट्रियल इज ग्रेटर देन 100, वो दोनों लेस देन 100 होंगे, सो आपको इंडस्ट्रियल वाला तो मिल ही जाएगा, एंड ईच जरूरत ही नहीं पड़ेगी दस में जाने की, सही कह रहे हैं, क्योंकि तुम्हारा ऑफसेट 100 तो हो ही नहीं रहा है, नहीं हो रहा और तुम्हारा कहीं से भी 90 के ऊपर तुम्हारा इंडस्ट्रियल नहीं, तो तुम्हारा वो मैटर ही नहीं आने वाला। इसमें जो इक्विटी 30% इक्विटी 70% बैंक का, तो ये पूरा फाइनेंसिंग अरेंजमेंट आप लोग करके देते हैं, और 30% का 26% लगेगा, 30 का 26। सर वो तो ग्रुप कैप्टिव अरेंजमेंट होता है, व्हेन यू आर टेकिंग इक्विटी स्टेक्स एंड आईपीपी इज पुटिंग अप ए प्रोजेक्ट एंड यू आर टेकिंग अंडर ग्रुप कैप्टिव, यू आर टेकिंग 26% इक्विटी स्टेक इन दैट आईपीपी प्रोजेक्ट। बट अगर आप अपना प्रोजेक्ट लगा रहे हैं, अपने केपेक्स पे प्रोजेक्ट लगा रहे हैं, तो टिपिकली बैंक्स फंड अप टू 75% ऑफ प्रोजेक्ट कॉस्ट, 25% आपको अपना लाना होता है, 25% में से 14% तो आपका जीएसटी आ जाता है, जो जीएसटी का आपको क्रेडिट मिल रहा है, which is 13.8%, so वो 14% आपको उसी उधर से आ जाता है, तो आपका नेट बचता है 11% की इक्विटी आपको लाना होता है, 75% आपको। आप लोग कंप्लीट फाइनेंसिंग अरेंजमेंट करवा के देते हैं। हाँ सर, हम करवा रहे हैं अपने क्लाइंट्स का, we are doing it for all our clients। अगर नितिन कोई बैंकर आएंगे ICICI बैंक से चले बैंक वाले है कोई हस्ती हमने बैंक वालों को भी इनवाइट किया था, ताकि हम लोग ICICI से ICICI कर रहे हैं आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, एक्सिस, इवन गवर्नमेंट, एसबीआई भी कर रहा है, सिडबी भी कर रहा है, सिडबी वाज प्रेजेंट, असेंबली की भी शायद मैडम आए थे। रेट ऑफ इंटरेस्ट अभी थोड़ा बढ़ा हुआ 9% क्या होता है? बोलिए 8 करार जी बोलो। जो नेट मीटरिंग का जो है 1 मेगावाट जो था, सीआरसी एनआरसी ने 5 मेगावाट तक उनका अप्रूव दिया है, लेकिन एमएससीबी नहीं कर रही, उसके लिए थोड़ा सा कुछ आएगा। वो ऑलरेडी कोशिश चल रही है, आप बन के रेडी है, सही अरे आप जो बोल रहे हो मालूम है, वो नहीं हो रहा, सबको पता है। करने की अभी पहले भी बैठे थे एनर्जी मिनिस्टर के साथ। एनर्जी मिनिस्टर के साथ यहाँ है हमारे मददगार, लेकिन वो भी अभी ज्यादा कुछ नहीं कर पा रहे, तो आप समझ लो स्लो चल रहे हैं। समझ सर, अभी बोलेंगे तो टाइम नहीं रोज बोलना चालू है, आपको ये बता रहा हूँ, वीआईए ने करीब 10 लेटर लिख चुके हैं ओनली इस टॉपिक पे जो आप बोल रहे हो, पर वो स्लो चल रहा है। सर वो ड्राफ्ट रेडी है, मुझे पता है, लेकिन अब मतलब आपको आपको जड़ी की सही होना है। नहीं, इसके अंदर में वो करने वाले ही नहीं है, उनकी इच्छा ही नहीं है करने की। वो एमईआरसी में चैलेंज फाइल कर दिया उन्होंने, या कर दे रहे अभी फाइल, कि उनको नहीं करना है 5 मेगावाट। कुछ चल रहा है तो आपने हाँ, 5 मेगावाट को नहीं करना, उनके पूरी मानसिकता से अपन ने बहुत दिया उनके ऊपर में, उनकी पूरी मानसिकता कि हमको नहीं करना है। हमने बोला कि आपको तो जब कोर्ट का ऑर्डर है तो आप क्यों नहीं फॉलो कर रहे? मैं तो बोल रहा हूँ सर, साहब आए हैं बैंगलोर से, हाँ। बोला 6 रुपए यूनिट सब खर्चा करके देता हूँ, तो अपन इस लगा लेके कहा कि एमएससीबी के पीछे जाना है, 6 रुपए पे कर दो, वरना सब बड़े सब लोगों को यूनिट कॉस्ट। नहीं, कैसे करेंगे? ये तो इंटरमीडिएट करंट मिल रहा है ना, कंटिन्यूस नहीं है ना, कंटिन्यूस हो आप जाए इनको डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी मत बनाओ कराने कि आप नए डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी अपॉइंट कर दो इस वीआईए हॉल में। नया एक्ट में आ रहा है। नहीं सर, उनके एडिशनल करना पड़ेगा, तभी तो करेंगे। नहीं ऐसा नहीं, चलो पुनीत जी, आप टाइम लेके आए हो? हाँ सर, बिल्कुल मिल सकता मैंने कल मुलाकात हो सकती है? What is the duration of your stay here? है। कल हम एक बार जाना चाह रहे थे, बट वी कैन कम बैक सर, वी कैन मतलब विल स्टे बैक, या हम कुछ कर लेंगे। आप बताइए। अपन इनके साथ ही जो अपना सेकंड हैंड विंड मिल की, इनसे आलोक जी के साथ ही डिस्कशन चालू था, तो इन्होंने ऑलरेडी शायद परचेज की हुई ऑलरेडी है। की हुई है, जरा पेपर वर्क में जरा प्रॉब्लम हो रही थी पिछले जरा साल। नहीं, लेकिन आज की समझ से ये भी आया कि सेकंड हैंड भी लेने का फायदा है, मतलब सेकंड भी है और फर्स्ट भी है, मैं तो ये बोल रहा हूँ यूटिलाइजेशन पूरा लो, हाफ हार्टेडली मत करो। हाँ सर, आई थिंक नाउ क्वेश्चन से सबके खत्म हो गया हो, तो वी कैन क्लोज द सेशन। So would like to thank team from Integram, all the 3 members, starting from CEO of Integram, CEO and sales head. So I think we had all the 3 people coming and sharing their knowledge. I think the Maharashtra has huge potential, and probably they have come to a very right platform where they will be able to have a lot of new customers coming up, and that's when they've already started with Plasto. So thank you very much for sparing your valuable time, sparing the information for all of us, and I'm hoping with this session today, new insights must have been taken by our fellow members, and benefit will be there for everyone to in coming time. Thank you.